Okay, so we are going to cover PCA. तो PCA आपका काम करता है VCA. It works on your covariance matrix. If it does have a covariance matrix, so it is able to find out the principal components. So covariance matrix is the foundation for the PCA. So as you are aware that this is the mean, how you can calculate the mean? Let's say you have one dimensional data. Okay, so you can easily find out this is the data. So what is the difference? Let's say this is the mean. For example, 3 is the mean. Okay, so you can find out where is the mean. Okay, right. So what would be your 1, 2, 3, 4, 5, 6? Okay, so in that case, what would your mean? How can you find out the mean? So let's say you can find out किसका मीन कैसे फाइंड आउट करना, 1, 2 और 6. आपके पास वन एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, एक डेटा ये है. Just you just sum up all of them and divide by 3, so you can find out the mean of the data. So this is now your mean. It becomes your mean. So this is how you can calculate the mean. This the mean is just an average. Okay, so you are just finding the average of all the 3 data points. So your mean is 3. So, and how you can find out the variance? Let's say we have 3 data, 1, 2, and 3. So variance is just distance from the mean and take the square of that and divide by total number of records. So for this data, this is distance from mean is 1. Okay, so 1 is square. For this data point, 0 is square plus 1 is square divided by 3. So variance is 2 by 3. In that case, mean is same, but we have the different variance because you can see here the variance is more. You can see variance or standard deviation, whatever. Okay, so variance is the square of standard deviation. So here you can see the variance is 0 to 5, 5 square, 0 square, 5 square, and 3. This is 50 by 3. So in the both the cases, we have different variance, and we can see here because here data is more dispersed. This data is less dispersed. We have the more variance in the data. So this is how we calculate mean and the variance. Now, what is the covariance? So that was our one-dimensional data. Let's say we have two-dimensional data. This is my two-dimensional data. This is my x dimension. This is my y dimension. Okay. So in that case, first let me take that variance on the x-axis. So on x-axis, this is your variance. I can calculate because I am projecting all my data on the x-axis, so I can find out the variance here. The same way, I am projecting all my data on the y-axis, so I can find out the variance of this data on the y-axis. Okay, so in this way, I can find out the variance on the x-axis and the y-axis on both the dimension. But I have the problem with the variance because what is the problem? Let's say this is my one of the data sample. I am having all 3 points. This is my another data point. In this case, you can see that data distribution is different. Here you can see more or less mean is same, and you can say variation is same because mean is same. You can see here if I am going to project it on the x-axis. Let's say this is x-axis. Okay, this is your my x-axis, and in that case you can see the mean is same for both the data points. Okay, let it is 0. Okay, and the variance is almost same because this distance is same, this distance is same, but you can say distribution is different because you can say this is more or less this kind of thing. Okay, and this is this kind of thing. So but variance is coming same. X variance for both of them is 8 by 3, and the y variance for both of them is coming, let's say, 2 by 3. This is 1 and this is 1 and this is 0. So in that case, x variance and the y variance for both kind of data distribution is coming same, but this distribution is not same. Mean and variance you can say is coming same for the x and y direction, but because of their distribution, but distribution direction is different, and variance is not able to capture that specific pattern of the data. Okay, it is able to capture the mean and variance. Okay, but it's not able to capture the specific direction of the data, how actually it is there in the multi-dimensional. So this is how we are going to come up to the covariance. Covariance is actually capable of capture this kind of variance when it is a kind of direction thing. So covariance is actually just we are going to multiply the dimension. Here you are x dimension, y dimension. So we are going to multiply them. So this become -2. Here 2 and -1. I am going to use -2, and for this point 0 into 0 becomes 0. So covariance for these 3 points is actually -2 plus 0 -2 divided by 3. So -4 by 3.
दैट मीन इस सर हम इसमें डिस्टेंस की जगह एक्चुअल पॉइंट की वैल्यू ले लेंगे। एक्चुअल पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो भी उसके डायमेंशंस हैं उस डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वी आर मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली। ओके, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट। सो हमें ये कोऑर्डिनेट्स हमें ये बताते हैं कि बेसिकली जो उसका वेरिएंस है वो बेसिकली उसका जो आप कह सकते हो स्लोप जो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो हियर यू कैन सी द कोवेरिएंस इज कमिंग -4/3, दैट मींस वी हैव द नेगेटिव स्लोप। हियर यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ नेगेटिव स्लोप। Okay, here you can say this is kind of the positive slope. Okay, so if you multiply them, then this is the everything is same, but the slope is 4.3. This is kind of thing अपने आप देखा होगा तो मुझे we have understood the linear regression में देखा था कि कोवेरिएंस कैसे काम करता है, कोवेरिएंस आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोरिलेशन। So this is more or less same kind of thing. This is the positive correlation, this is the negative correlation between the data. ओके, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज पॉजिटिव। इसमें आपकी जो लाइन है दिस इज स्लोप आपका नेगेटिव है, इसमें आपका स्लोप आपका पॉजिटिव है, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो हियर यू कैन सी द कोवेरिएंस इज -4/3 एंड द कोवेरिएंस इज +4/3. So here I with the I have the mean, I have the variance, and I also have the covariance. Now these three attributes are actually giving me the correct picture of the data distribution. Mean was also not able to give me the correct picture. Variance alone is not giving me the correct picture, but variance and covariance in the mean, all together these three of the things are going to give me the correct picture of the data distribution. Okay, so here you can see this is my negative distribution, so this is kind of negative slope. This is covariance 0. Okay, because all of the data are simultaneously distributed between the mean. Okay, so we have the covariance 0 in that case because data is distributed all around the mean, this kind of circle kind of thing, because आपसे कोई आपको चेंज दिखाई नहीं देगा. Here we have the positive correlation because this is kind of positive thing. So this is negative covariance, this is 0 covariance, this is the positive covariance. Okay, this is how we are going to calculate the covariance. And how we are going to create the covariance matrix. So covariance matrix करने के we are just doing the same thing. Let's say मेरा data set यहाँ पर था. Okay. First I am going to normalize it. Normalize करने का मतलब क्या है कि मैंने इसको mean को मैंने उसको उठा के मैंने उसको mean से subtract कर दिया, मैंने इसको उठा के सिर्फ यहाँ पे ले आया, मैंने उसको mean से हटा के यहाँ पे कर दिया. Okay. Now जो मेरा original data set था, let's say my original data set was x, so I have minus each and every data point with the mean. So मैंने सब में से mean को minus कर दिया. Okay, complete data set को. अगर ये मेरा complete x था, so now this has become x minus mu. So मैंने each and data point को क्या कर दिया, mean से mean पे ले आया मैं उसको. Okay. So now this my data is on the mean. Now 0 has become the mean more or less. अगर mean जो भी होगा मतलब उसके आसपास आ जाएगा. अब मेरा डाटा यहाँ शिफ्ट कर दिया. So आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनता है? Let's say this is 2-dimensional data. So here is your this data का कोवेरिएंस with the x. या x related इसका वेरिएंस कितना है? y डायरेक्शन में इसका वेरिएंस कितना है? This is this thing. अगर आप देखोगे तो x पे इसका वेरिएंस कितना आ रहा है? This is एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये आ गया. So this is ये x एक्सिस से वेरिएंस आ गया आपका, जो मैंने यहाँ पर रख दिया. y एक्सिस से वेरिएंस कितना है आपका? दिस इज जो भी आपका वेरिएंस आएगा जो आप निकालोगे, दिस इज योर वेरिएंस, वो आपने उठाकर यहाँ पर रख दिया. वो कोवेरिएंस आपका कैसे निकलेगा? जब आप इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, वो आपका यहाँ पर आ गया. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स योर कोवेरिएंस मैट्रिक्स. सो दिस इज योर कोवेरिएंस मैट्रिक्स. ओके, एंड जनरली इट इज जो आपका होता है, ये आपका जो साइज होता है, इट इज d by d. D is the number of dimensions. Okay, so basically this is your number of dimension. Okay, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मेरा x minus mu, मेरा x minus mu है x minus mu, और मैं x minus mu को ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं, बेसिकली x minus mu को x minus mu से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्चुअली व्हाट आई गेट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स. ओके, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन से, दिस इज माय x minus mu. Okay, and this is my x minus mu transpose. So actually it gives me the covariance matrix. So आप इसको कुछ वैल्यूज रख के आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द कोवेरिएंस मैट्रिक्स. आप इसको प्रूव भी कर सकते हो वैल्यूज रखने के बाद. यू जस्ट पुट सम वैल्यूज x, उसके मीन से माइनस करोगे तो आपको सेम वैल्यूज मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट द, आप उसको मीन से माइनस करो, मीन से माइनस करने के बाद जस्ट टेक इट, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको सेम चीज मिलती है. सो आपको
मीन से मल्टीप्लाई करने के बाद मीन को मीन से ट्रांसपोज, मीन को मीन से मल्टीप्लाई करोगे दिस को, यू विल गेट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, यू कैन प्रूव इट इजीली। सो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स आपका इस तरीके से आपका बनता है। इफ आई एम हैविंग नंबर ऑफ d dimensions, then my covariance matrix of d into d dimension. Okay, now we are going to prove, क्योंकि हम इसको कोवेरियंस को मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि कोवेरियंस मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, एंड एक्चुअली व्हाट इट इज एक्चुअली गोइंग टू कैप्चर। ओके, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स आपका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैप्चर करता है आपका, कि डेटा आपका किस तरीके से है, मीन क्या है, मीन ऑलरेडी कैप्चर हो गया आपका, वेरिएंस क्या है, कोवेरियंस क्या है, सो इट इज हैविंग ऑल टुगेदर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डेटा, तो ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द notebook. Okay, so let me edit new section, let me add new page, this view full screen. Okay, so this is our PCA. So I will try to cover the complete mathematics. अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, सो कंफ्यूजन आपको तभी होगा जब आपके बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के कांसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज covariance matrix, we are going to use single value decomposition, and we are going to use eigenvalues, we are going to use eigen vectors, and we are going to use Lagrange's multiplier. So these all concepts are going to be used when we are going to implement the PCA. Okay, let's say, come on. ये इसका क्या करूँ मैं, इसको उठा के मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। Okay, so I just draw. Okay, I have few data points. Let's say I just plot few data points here. Let's say these are my data points. ये मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। Okay, and let's say this is my X, and let's say this is my Y. So I need to find out the principal component. और ये आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट काम करता है वो आपका काम करता है बेसिकली कि हम क्या करते हैं, डेटा को आपका क्या करते हैं, डेटा को आप सुपर इम्पोज करते हो काइंड ऑफ, ओके, ऑन द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। और जो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक्चुअली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एनी वेक्टर, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एनी वेक्टर जो वेक्टर बेसिकली आपका मैक्सिमम वेरिएंस आपका कैप्चर कर पाए। सो दिस इज फंडामेंटल कांसेप्ट इज टू कैप्चर द maximum covariance, maximum variance in the data, you can say. सर इसमें एक चीज पूछनी है, जैसे हमारा जो डेटा होता है वो हाई डायमेंशंस में होता है, तो हम एक वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, प्लेन का वो फाइंड आउट करते नहीं, हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज जो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली दीस आर द वेक्टर्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वेक्टर। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वेक्टर कि जो वेक्टर बेसिकली मुझे मैक्सिमम मुझको वेरिएंस फाइंड आउट करके देंगे। और जो आपके जहाँ पे आपके जो वेक्टर्स आते हैं, जो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आते हैं, विच आर एक्चुअली 90 डिग्री टू ईच ऑफ देम, ठीक है ना, सब आप एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। लेट्स से दिस इज माय PC1 एंड दिस इज माय PC2, एंड द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आपका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है, बिकॉज दैट इज आपका सिमेट्रिकल होता है। तो जब भी आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिकल होगा, तभी आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनेंगे वो आपके एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे हमेशा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल this is my first, for example कि मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ओके, और जो आपका सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा भी हम डिसाइड करेंगे कहाँ से आते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनिशियल कहीं से स्टार्ट करने के लिए वी हैव टेकन दिस इज माय फर्स्ट, ओके, एंड लेट्स से दिस इज माय सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट। ओके, सो दिस इज माय, I'll say this is my PC1,
एंड लेट्स से दिस इज माय pc2. ओके अब मैं इन सब डेटा को क्या करता हूँ, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूँ. अभी डेटा मेरे इस ऊपर अगर प्रोजेक्ट होगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये डेटा मेरा प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, दिस दिस दिस. तो मेरा डेटा कंप्लीट इसके ऊपर मेरा प्रोजेक्ट होता हुआ चला गया. ये डेटा मेरे इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया. ऐसे अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा इसके ऊपर तो इट विल बी समथिंग, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा सर. This is your variance capture and this is the complete variance captured for the PC1. Okay, so I will try to find out these vectors. Actually, these are called the principal components, which are actually going to give me the maximum variance in the data. तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि जो PC1 है actually that is going to give me the maximum variance. So अगर मुझे PC1 और PC2 में से अगर मुझे सिर्फ एक principal component अगर मुझे select करना है, so that would be the PC1. ओके सो ये मेरा x1 है, ये मैं x और y कह सकते हैं इसको, x और y. अगर मैं इसको x1 और x2 बोल दूंगा क्योंकि हम लोग x1 और x2 यूज करेंगे. अभी मेरे पास 2 डायमेंशन है, ये दो फीचर्स हैं x1 एंड x2. ओके लेट्स से आई हैव वन, मेरे पास जो कंप्लीट डेटा सेट है दैट इज कॉल्ड x. ओके एंड दैट इज माय x1 x2 xn. आई हैव टोटल n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके और मेरे पास टोटल फीचर्स कितनी है d by n. सो इसका साइज मेरा कितना हो गया d into n, where d is the number of dimensions and this is number of records, or you can say data points. ओके अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस सारे डेटा पॉइंट्स को या x को मुझे क्या करना है, बेसिकली इसके ऊपर इंपोज करना है. तो इंपोज करने के बाद डेटा मेरा 2 डायमेंशन में या किसी भी डायमेंशन में मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिलने वाला है. आई विल एक्चुअली गेटिंग अ पॉइंट ओनली, क्योंकि मेरा किसी भी डायमेंशन का डेटा होगा अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इन अ सिंगल डायमेंशन. ओके सो मेरा प्रोजेक्शन मेरे लिए कैसा होगा, हाउ इट विल गोइंग टू डू. सो आई विल बी टेकिंग, दिस इज माय x. I will be getting some matrix, that is let's say some matrix U. okay ट्रांसपोज, क्योंकि हम उसको ट्रांसपोज करते हैं. ओके और ये मेरा कितने का है, d into n का, और ये मेरा है 1 into d का. ओके सो ये मुझे क्या देगा, अल्टीमेटली वन डायमेंशन, सारे डाटा पॉइंट्स को वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा ये मैट्रिक्स जब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी. ओके सो इट इज गोइंग टू मी 1 into n मैट्रिक्स में देगा, 1 into n साइज का, जहां पे आपका each and every data point is single dimension data points. okay so we ultimately actually u क्या था आपका, u का जो साइज था that is actually d by 1, उसको मैंने ट्रांसफर करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके सो ये मुझे सारे पॉइंट्स मुझको मिल गए हैं, सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन मुझे मिल गया. ओके दिस इज अल्टीमेटली अ मैट्रिक्स. और मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली में ये जो मेरे पास प्रोजेक्शन आया है, मुझे इसका मैक्सिमम वेरिएंस चाहिए. ओके व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट, ये भी जो मेरे पास, जो भी मेरे पास प्रोजेक्शन आया है, इस प्रोजेक्शन का मुझे मैक्सिमम वेरिएंस चाहिए. ओके दिस इज नथिंग बट द projection of data points on u. u मेरा क्या है, this is 1, this is my u1, जिसको मैं u1 बोल देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट u1 बोल देता हूँ. सो दिस इज माय एक्चुअली u1. ओके ये मेरा सारे डाटा पॉइंट का प्रोजेक्शन है u1 के ऊपर. ओके सो इस प्रोजेक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है. सिंपल सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है. मैंने प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया है. अब इस प्रोजेक्शन को मुझे बेसिकली, एंड दिस u इज नथिंग बट अ वेक्टर, 1 into d साइज का मेरा वेक्टर है. ओके अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस प्रोजेक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है. ओके अब मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, वेरिएंस को. लेकिन मेरे पास वेरिएंस तो है नहीं, मेरे पास तो x है, लेकिन इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्शन है, लेकिन मैंने प्रोजेक्शन तो निकाल लिया, लेकिन वेरिएंस अभी तक मैंने नहीं निकाला है. सो आई विल टू फाइंड आउट द वेरिएंस. ओके सो मेरा जो वेरिएंस आएगा x का, let's say this is actually, let's say I will take S is covariance matrix of X. साइज क्या होगा इसका, of dimension d into d. हमने भी देखा था कि अगर आपका कोई भी
मैट्रिक्स है जिसमें कि आपके रिकॉर्ड्स हैं और डायमेंशन उसके डी है, तो आपका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनता है वो डी बाई डी का बनता है। सो इसका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा एक्स का, दैट वुड बी, लेट्स से इट इज, आई एम कॉलिंग इट एक्स, और उसका डायमेंशन क्या है आपका एक्स डी इंटू डी। तो मुझे एक्चुअली में करना क्या है, मुझे अब जो वेरिएंस है एक्स का, जो जो प्रोजेक्शन आ गया है, उसको मुझे बेसिकली क्या करना है, इसके मैक्सिमाइज करना है। सो व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू, लेट्स कम हियर। तो मैं वेरिएंस को, मैंने UTX लिया हुआ था, तो मेरा एक्चुअली होना क्या है, मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा होना क्या है, मेरा होना है बेसिकली UT, और दिस इज, मुझे मैक्सिमाइज करना था मुझे वेरिएंस UT और X का। ओके, वेरिएंस मेरा क्या है, X का वेरिएंस मेरा है ऐसे। अब किसी भी अगर में जो मेरा वेरिएंस होता है, दैट इज ए D इंटू डी मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं किसी, और ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज काइंड ऑफ, you can say this is kind of स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं उसको किसी भी, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, यू कैन से विद द स्केलर वैल्यू, ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेशन मेरा कैसे हो जाएगा, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी UT ट्रांसपोज X एंड U। ओके, अब मुझे इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अभी मेरे पास वेरिएंस आ गया, नॉट X नहीं, सॉरी S। ओके, क्योंकि X को मैंने S से रिप्लेस कर दिया, S आपका D बाई D का मैट्रिक्स है। ओके, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब मैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका मल्टीप्लिकेशन S के लिए आपको उसके मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका आपका UT भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअली आपका स्क्वायर होना है, क्योंकि X आपका स्क्वायर है। पहले सिर्फ X से मल्टीप्लाई था, वो S से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो S क्या है, इसलिए आपका मोरलेस X का क्या है, स्क्वायर है। X आपका, दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से कोवेरियंस मैट्रिक्स है। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल X का स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे UT क्या होगा, आपको उससे डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ इट। तो आपके यहाँ पे ट्रांसपोज, जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो U इंटू UT लेना पड़ेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल टेक U इंटू T। ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अभी मुझे मैक्सिमाइज करना है इस कॉलम को। आई हैव टेकन द कोवेरियंस मैट्रिक्स, जहाँ पे जो मैंने X से मल्टीप्लाई किया था U से, नाउ माय UT एक्चुअली बिकम UT इंटू T, क्योंकि आई एम मल्टीप्लाइड विद द कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स इज मोर लेस द स्क्वायर ऑफ द X। सो अब ये मेरी प्रॉब्लम है जिसको मुझे, ये मेरा वेरिएंस है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम है मेरे पास वेरिएंस आ गया है, ये कंप्लीट का विद द वेरिएंस, ये मुझे मैक्सिमाइज करना है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्रोजेक्शन है, जिस प्रोजेक्शन में कोवेरिएंस यूज कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो सिंपल सा तरीका, मैं U जो मेरा है U, इसकी मैं लेंथ बढ़ाता चला जाऊँ, इसमें जितनी भी लेंथ बढ़ाता चला जाऊंगा, ये मेरा कोवेरिएंस उतना है, ये मेरी टोटल टर्म उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस टर्म इज गोइंग टू इंक्रीज until and unless I am going to increase the U का डायमेंशन में चेंज करना चाहूंगा, तो मैं U का जो मेरा मैग्नीट्यूड है, if I am going to change the magnitude of U, तो हमेशा ही आपकी ये टोटल टर्म आपकी चेंज होती चली जाएगी। सो मेरे पास कभी मैं इसको मैक्सिमाइज की, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, मैं इनफाइनाइटली इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट ए स्केलर, U इज ए स्केलर, तो इसकी वैल्यू में जितनी बढ़ाता चला जाऊंगा, इसकी टोटल वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। सो आई कैन नॉट सॉल्व इट, सो व्हाट कैन आई डू, सो आई कैन टेक अ लिमिटेशन ऑफ दैट। मुझे आई हैव टू टेक, अगर इस प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, सो आई विल टेक सम एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो मैं एक्सटर्नल लिमिटेशन में क्या लेता हूँ, आई विल टेक कि जो मेरा ये U1 है, ओके, आई डोंट नीड कि आपके किसी भी साइज का हो या इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, आई विल टेक द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। मैं इसका मैग्नीट्यूड क्या करता हूँ, उसको मैं X का मैग्नीट्यूड में 1 ले लेता हूँ, आई विल टेक द मैग्नीट्यूड 1। सो उस केस में क्या होगा, क्योंकि आई एम नॉट वरीड अबाउट कि इसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना है, आई एम वरीड अबाउट की डायरेक्शन कितनी है, क्योंकि वेक्टर इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन। सो मैं इसमें एक्शन कंडीशन ऐड कर देता हूँ, दैट इज माय एक्शन कंडीशन कि जो इसका साइज होगा U का, दैट मैग्नीट्यूड शुड बी 1, दैट मींस U should be equal to 1। सो मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, कि आपका जो ये आपका वेक्टर है, ओके, जिसको मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट अभी नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ वेक्टर जिसके ऊपर मैंने प्रोजेक्शन किया है, कि वो आपका यूनिट साइज होना चाहिए। आई एम नॉट वरीड कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है, आई एम जस्ट वरीड अबाउट द डायरेक्शन। ओके, अब मुझे इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है with respect to this condition UT U equal to 1, ये आपको 1। ओके, अब जब भी हम कोई इक्वेशन होती है मैक्सिमम, या अगर आप देखोगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम आएगी,
वो आपकी मोरलेस इस तरीके से आती है। इसमें आपका जब आपको कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने इसमें आपके एक्शनल कंडीशंस होती हैं, तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द लैग्रांज मल्टीप्लायर। सो आई एम गोइंग टू यूज द लैग्रांज मल्टीप्लायर। So I am going to add the Lagrange multiplier to solve this equation. तो Lagrange multiplier क्या करता है, बेसिकली इस कंडीशन को इसमें ऐड कर देता है। ओके, सो अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई नीड टू मैक्स ut su, okay, and this is minus lambda, this is lambda is nothing but the Lagrange multiplier, और ये कंडीशन उसने ऐड कर दी, this is ut ट्रांसपोज माइनस 1। ओके, ये कंडीशन आपकी पूरी इसमें ऐड हो गई। तो अब मुझे बेसिकली क्या है, दिस इज माय लैग्रांज मल्टीप्लायर, इक्वेशन बनेगी लैग्रांज मल्टीप्लायर, ओके, u एंड लैम्डा की, ठीक है। ये दोनों मेरे क्या है, बेसिकली ये दोनों मेरे क्या है, अननोन वेरिएबल है। लैम्डा भी अननोन है मेरा, u भी अननोन है, s मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि s कोवेरिएंस मैट्रिक्स है x का। तो नाउ दिस इज अ लैग्रांज इक्वेशन विद द टू अननोन वेरिएबल्स लैम्डा एंड u। इसको मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको याद होगा, अगर आपने एसटीएम में याद है तो एसटीएम में हमने कैसे किया था, एसटीएम में हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज किए थे, पार्शियल डेरिवेटिव लिया था डुअल वॉल प्रॉब्लम पे। यस, तो यहाँ पे हमारी अभी क्या है कि हम वही सेम काम करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे u1 निकालना है। सो आई एम गोइंग टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dl विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो पार्शियल बिकम, ये मेरा स्क्वायर है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर, ये स्क्वायर ही है। मैट्रिक्स फॉर्म में स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, तो ये आपका 2 इधर आ गया। ओके, इट इज यू कैन से c नॉट c, दिस इज s और यू कैन से u, ओके, माइनस व्हाट इट वुड बी, इट वुड बी ये भी आपका स्क्वायर है बेसिकली, तो लैम्डा आपका ऐसा कैसे था, एंड इट विल 2 और आपका u, ये आपकी चीज आ गई। ओके, एंड जस्ट पुट इट इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, दिस इज एस यू इक्वल टू लैम्डा यू। सो दिस इज द कंडीशन दैट इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। ये लैग्रांज ने आपको ये कंडीशन दी है, एक्चुअली दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, ये आपको क्या बताती है, अब नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके एल लैम्डा इज लैग्रांज मल्टीप्लायर, लैग्रांज मल्टीप्लायर। ये कंडीशन एक्चुअली में क्या है, यानी कि मेरा एक्स एस क्या है, एस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑफ डी इनटू डी साइज। ओके, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, ओके, मेरे पास एक वेक्टर है u, उसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं यूजिंग द मैट्रिक्स s, और मैं एक्चुअली आई एम गेटिंग द सेम मैट्रिक्स विद द ओनली द मैग्नीट्यूड। मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन मेरी किसके लिए होती है, आइगन वेक्टर्स के के लिए। लिए। यस, एग्जैक्टली। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द आइगन वेक्टर। दिस इज द कंडीशन फॉर आइगन वेक्टर्स, यानी कि बेसिकली जो w, ये जो मेरा u है, u इज एक्चुअली आइगन वेक्टर ऑफ द s। यानी कि जो मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, वो सारे सॉल्यूशन मेरे वो आएंगे जो बेसिकली मेरे जो मेरे कोवेरिएंस मैट्रिक्स है उसके जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे वो बेसिकली मेरे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है अभी तक, ठीक है ना, और विच इज कमिंग फ्रॉम लैम्डा। अब मैं इस प्रॉब्लम को उठा के, जो मेरा सॉल्यूशन आया इसको उठा के मैं क्या रख देता हूँ, इस यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, लेट्स जस्ट पुट su इक्वल टू लैम्डा u, उठा मैंने यहाँ पे रख दिया, जस्ट कम हियर। ओके, तो मैंने क्या थी मेरी कंडीशन, मैक्स और su को कर दिया मैंने लैम्डा u, दिस इज बिकम ut, और लैम्डा su की जगह मेरा आ गया लैम्डा u। ओके, सो एंड लैम्डा मेरा सिर्फ एक स्केलर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज मैक्स लैम्डा ut एंड u, और ut मैंने क्या लिया हुआ है, इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो इसको मैं 1 रख सकता हूँ। तो मैक्स इक्वल टू लैम्डा, यानी कि बेसिकली इस पूरी प्रॉब्लम की जहां की मुझे मैं प्रोजेक्शन निकाला हूं डाटा पॉइंट्स का ऑन द वेक्टर्स, तो वो वेक्टर्स होंगे पहले तो जो बेसिकली मेरे कोवेरिएंस वेक्टर के आइगन वेक्टर्स हैं फर्स्ट, और उसमें कौन सा आइगन वेक्टर मेरा मैक्सिमाइज कर रहा है, जिसके लिए आपकी आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो लैम्डा इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू, दिस इज आइगन वैल्यू। यानी कि अगर मेरे पास लेट से
मेरे पास टोटल आइगन वेक्टर्स कितने आते हैं, अगर इस S का साइज d into d है तो टोटल नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आपके होते हैं, आइगन वेक्टर आपके लेस देन इक्वल टू d, दिस इज द कंडीशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो लेट्स से मेरे पास d into d साइज का कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो मेरे एटमोस्ट मेरे पास d आइगन वेक्टर्स आएंगे, तो उसमें से हाईएस्ट कोवेरिएंस मुझे कौन सा देगा, हाईएस्ट कोवेरिएंस मुझे वो देगा जिसके लिए आइगन वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम है। ओके, सो दिस इज the condition that is going to give me this is the eigenvector that is going to give me the highest, जो क्या चाहिए था मुझे, covariance or the variance in the data। okay, this eigenvector is going to be the highest। अब लेट्स मेरे पास टोटल, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है और ये मेरे टोटल सॉल्यूशंस है। तो अगर मेरे पास, अगर मुझे केवल एक आइगन वेक्टर निकालना है या एक प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है, ओके, इन आइगन वेक्टर को आप बेसिकली फाइनल बोलते हो प्रिंसिपल कंपोनेंट। ओके, अगर मुझे सिर्फ एक प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है विद द हाईएस्ट, क्या कहते हैं आपको, वेरिएंस, सो आपका हो जाएगा आइगन वेक्टर जिसके लिए आपकी लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेट्स से टोटल मेरे पास डी निकल के आते हैं। ओके, यहाँ से आई हैव टोटल डी आइगन वेक्टर्स फॉर एस, सो लेट्स से दिस इज माय लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड लेट्स से लैम्डा डी। ओके, एंड ये आपका इस तरह से आपके हैं। ओके, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा में कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो आइगन वेक्टर है, लेट्स से दिस इज E1 or let's say this is E2 or let's say this is ET, or you can also say principal component 1 or principal component 2 or principal component D। so अगर आपको टॉप 5 चाहिए, टॉप एक सिर्फ A1 चाहिए, so this is the one। अगर आपको टॉप 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट चाहिए, दिस इज टॉप 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट। आपको टॉप 10 चाहिए, दिस इज टॉप 10। टॉप D चाहिए, दिस इज टॉप D। दिस इज कंप्लीट। so this is how principal component works for you। और प्रिंसिपल कंपोनेंट हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि अगर मुझे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालने हैं या वो वेक्टर्स निकालने हैं जो कि आपका मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर कर पाए, सो एक्चुअली दीज आर नथिंग बट द जो आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनेगा, उस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स होते हैं। ओके, और आइगन वेक्टर्स में जिसके लिए आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट, उस बेसिस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब लेट्स से पीसी क्या करता है, पीसी लेट्स से मैंने पीसी कॉल किया, ठीक है, पीसी में डाल दिया मैंने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल टू 10, तो क्या करेगा, टॉप 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाल के मुझे दे देगा। ओके, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएगा कि टॉप 10 जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं ये कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहा है एक्चुअली में। इट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ कितना वेरिएंस उन्होंने कैप्चर किया है, वेरिएंस इन्होंने कैप्चर करने वाले, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ डी 100% करेंगे, आपने डी निकाला है, क्योंकि डी आपका क्या कर रहा है कि 100 मोर और लेस आपका 100% आपके जो है वेरिएंस को कैप्चर कर पा रहे हैं। लेट्स सी, लेकिन आपकी जो डी है आपका बहुत बड़ा है, डी इज इक्वल टू 1000 है आपका। ओके, तो स्टार्टिंग में आप 1000 डायमेंशन लेके चले हो और आपके टोटल 1000 डायमेंशन आपके टोटल वेरिएंस को कैप्चर कर रही है डाटा के, लेकिन मुझे इतनी सारी फीचर्स मुझे यूज नहीं करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पीसी कॉल करूंगा। लेट्स मैं लिया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 100, मैं सिर्फ 100 फीचर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, टॉप 100 प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालेगा एंड विल सी के ये टोटल कितना वेरिएंस कैप्चर कर पा रहा है। लेट्स से ये हमारा जो है टोटल टॉप 10 ही 95% कैप्चर कर लेते हैं, और बाकी जो मेरे बचते 900 वो आपके 900 से 5% को कैप्चर कर रहे हैं। ओके, तो आपके टॉप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जो आपके मैक्सिमम वेरिएंस को कैप्चर कर रहे हैं, तो उस केस में आई विल गो फॉर कि आई विल टेक द ट्रेड ऑफ कि मेरे पास 100 फीचर्स लेने के बाद आई एम एक्चुअली एबल टू कैप्चर द 95% ऑफ द पैटर्न्स इन द डेटा, और मुझे अगर सिर्फ 5% और कैप्चर करना है तो मुझे 900 प्रिंसिपल कंपोनेंट और ऐड करने पड़ेंगे, नए फीचर्स। सो आई विल टेक द ट्रेड ऑफ, ठीक है, मे बी आई एम लूजिंग सम इन्फॉर्मेशन और व्हाटएवर, लेकिन दिस इज गोइंग टू मेक माय प्रॉब्लम इजियर। सो मैं क्या करूंगा, आपके टॉप 10 या टॉप 100 जो मेरी पीसी है उनको लेके मैं क्या करूंगा, अपना पूरा नया मॉडल क्रिएट कर लूं। जब भी मुझे मॉडल क्रिएट करना है, मैं टॉप जो मेरी 100 नई फीचर्स बन के आई जिनको प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलता हूँ, उनको लेके मैंने मॉडल बना लूंगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट मेरे 100 प्रिंसिपल कंपोनेंट इज एबल टू कैप्चर 95% ऑफ द डेटा पैटर्न्स। जो भी डेटा की आपकी जो भी डेटा की क्वालिटी का हो या डेटा की फीचर इंपॉर्टेंस को या उसमें पैटर्न को व्हाटएवर या उसका वेरिएंस बोलो, सो दे आर एबल टू कैप्चर 95% ऑफ द वेरिएंस इन द डेटा। 5% आपने लूज किया, लेकिन आपने उसका आप देखो डेटा आपने 90% आपने उसको कम कर दिया। ओके, सो आपकी प्रॉब्लम इस आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, आपने 90% उसको कम कर दिया। सो दिस वे पीसी इज गोइंग टू यूज द आपकी डायमेंशनलिटी रिडक्शन को कम करता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स बिकम सॉल्वर एंड यू कैन यूज इट विद द लोअर डायमेंशन एंड मेक योर मॉडल। तो उसके बाद आपकी टॉप 100 फीचर्स आपकी आ गई, तो पीसी क्या करेगा, आपके टॉप 100 फीचर्स जो आ गए, इन टॉप 100 की फीचर्स को आप मॉडल ट्रेन कर लो अपना, जो भी आपको जो भी मॉडल ट्रेन करना है, चाहे आपका लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, या आपका एसवीएम है, या आपका रैंडम फॉरेस्ट है, व्हाटएवर जो भी है, उसके मॉडल को ट्रेन कर लो।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो एक्चुअली वी आर, मुझे इसमें एक डाउट है कि जैसे आपने बोला कि आपके पास 1000 डेटा पॉइंट्स थे और आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट 100 ले लिया, मतलब आपके पास 100 ऐसे वेक्टर्स आ गए जिसपे आपने अपने सारा डेटा पॉइंट्स सुपर इम्पोज या प्रोजेक्ट कर लिया बेसिकली। तो हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास 100 ऐसे लीनियर लाइंस बन रही होंगी, मतलब कैसे, मतलब वेक्टर, कोई एक वेक्टर होगा उसी के देखो ऊपर ये इम्पोज कैसे करा बनता होगा। है, देखो फिर मैं नहीं लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, दीज आर द डेटा पॉइंट्स, ओके, दीज आर डेटा पॉइंट्स। लेट्स से ये आपके डेटा पॉइंट्स जो थे, ठीक है, आपके 2 डायमेंशन में। अब आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट लेट्स से ये दिस इज योर फर्स्ट PC1 और लेट्स से दिस इज PC2 फॉर एग्जांपल। मैं 2 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जिसने डाटा इंपोज करके उसने ये कर दिया, आपका डाटा इंपोजिशन करने के बाद आपका ये आ गया, लेट्स से दिस इज द डाटा। तो आप एक काम कर लो, आगे से Z भी ले लो, फिर 2 डायमेंशन में कर दो तो इजी हो जाएगा। ओके, और इसमें आपके लेट्स से ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके, और लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट आपका इंपोज हो गया इस पर यहाँ, ठीक है, और ये आपका डाटा पॉइंट पर्टिकुलर इंपोज हो गया इस पे यहाँ भी, ठीक है। तो अब आपका जो वैल्यू थी वो ट्रांसफर होके इसकी अब यहाँ पर यहाँ पर आ गई। तो लेट्स से आपके इससे प्रिंसिपल कंपोनेंट 50 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर सब पे जो इंपोजिशन होगा उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंगल डायमेंशन होगा हर वेक्टर पे आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट पे, ओके। अब मेरे पास 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट अलग अलग आए जो कि 1 डायमेंशन करने हैं। अब मुझे तो डाटा मुझे लेट्स से 2D में रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से मेरे को डाटा 2D में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से उठा के ये और ये इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए एक्स और वाई एक्सिस, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा, पहले इसको ये ट्रांसपोज करके ऐसे इसको एक्स और वाई एक्सिस दोनों में मिक्स कर देगा, सेट कर देगा। तो अब आपका PC1 ये बन गया और PC2 आपका ये बन गया। हाँ सर, मतलब ये PC1 है PC2 है, इसमें ऑलरेडी पॉइंट्स इंपोज हैं कुछ कुछ। आपके पॉइंट इंपोज है, जब जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपका पॉइंट ये आ गया, और लेट्स से PC2 आपका ये आपका वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये क्या करेगा, इसको ये करेगा और ये करेगा और फाइनली 2D में ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस डेटा के ऊपर, अब जो ये आएगा फिर इस डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन कुछ भी एग्जैक्टली। और सर ये जो ये पॉइंट होता है कि ये यहाँ से तो ये इंडेक्सेस मेंटेन करके रखता है कुछ, कि मैंने इसको यहाँ पे इंपोज किया था, उसी डेटा का इंपोजिशन दूसरे वो तो करेगा ही ना कि कौन से डेटा कहाँ इंपोज हुआ है, वो तो करके चलता है वो। तो एक तरीके से हमने पूरी डायमेंशंस उसकी जो डायमेंशन इन द सेंस जो फीचर्स थे उसको एकदम रिड्यूस कर दिया सीधे 1000 से 100 पे। यस एग्जैक्टली। तो हम कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी का वो अब लेट्स से मेरे पास यही डाटा मेरे पास 3 पे मेरे पास 4 डायमेंशन में था, और लेट्स से मैं टॉप 2 PC1 और PC2 चूज करना चाहता हूँ, तो 4 डायमेंशन में क्या करेगा, उसके 4 डायमेंशन में उसने इंपोज किए होंगे, प्रोजेक्शन किए होंगे, लेकिन मैं टॉप 2 उठा लिया, लेट्स से यही डाटा आपका 4 डायमेंशन में था, इसको मैंने 2 डायमेंशन में इंपोज किया और उसको मैंने 2D में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। तो 4 डायमेंशन को मैंने 4D को ये मेरा 2D में रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से। हाँ ठीक है, मेरे को क्लियर है। ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? ओके, तो PCA इज योर डायमेंशनलिटी प्रेडिक्शन टेक्निक, जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं और आपको अपना मॉडल आपको ट्रेन करना है। सो उस केस में यू कैन यूज द PCA फॉर द डायमेंशन रिडक्शन, ओके, एंड यू कैन सेलेक्ट द टॉप 20 और टॉप 100 एंड टॉप 50 जो भी आपके पास सोल्यूशन है जो भी आपको मैक्सिमम वेरिएंस आपको दे रहा है, तो उस तरीके से आप PC चूज कर सकते हो, उसको फिर अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हो। सो जनरली क्या होता है कि आपको जब ये PC आपको होता है तो PC आपको बताता है कि आपके ईच एंड एवरी PC जो है आपका PC1 कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहा है, PC2 कितना कैप्चर कर रहा है, PC3 कितना कैप्चर कर रहा है। लेट्स से मेरे पास टोटल डायमेंशन D है, ठीक है, तो PC PD तो बस सारे आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स से मेरी डायमेंशन जो थी 1000 थी, तो 1000 के 1000 ही मेरे को क्या करके देगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट दे देगा, तो बताएगा PC1 कितना कैप्चर कर रहा है, लेट्स से इट इज कैप्चर लेट्स से 20%, लेट्स इट इज कैप्चर 10%, इज लेट्स से 2%, 1%, तो पूरी सीक्वेंस मेरे पास आ जाएगी। ओके, सो जैसे रैंडम फॉरेस्ट हमें फीचर इंपॉर्टेंस देती है। हाँ, ये आपको बताएगा कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना वेरिएंस आपका कैप्चर कर रहा है। और अच्छा, जब शुरू में हमने जो स्टार्ट किया था लीनियर रिग्रेशन जब किया था, तो हम सारे फीचर्स का वो निकालते थे कोफिशिएंट। यस, तो उसमें से भी हम देख सकते थे कि कौन सा जो फीचर है which is more important, right? so is it not same roughly? It is more or less same इस तरीके से कि अगर आपका, क्योंकि ये भी ये मान के चलता है कि आपके जो फीचर्स हैं वो आपस में हाईली कोरिलेटेड है,
तो लीनियर रिग्रेशन मान के चलता है हाईली कोरिलेटेड नहीं है, उसका फंडा अलग होता था, राइट। यहाँ पे मान के चलता है कि आपकी फीचर हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि इससे बेसिकली जितना ज्यादा कोरिलेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मान के चलो कि बेसिकली यहाँ पे ये भी मान के चलता है कि आपके ईच एंड एवरी फीचर, ये फीचर को कंबाइन करने का ट्राई करता है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स का, तो ये भी बेसिकली आपका देखो तो कोरिलेशन पे काम करता है, ये भी आपके फीचर के कोरिलेशन पे ही काम कर रहा है, बेसिकली फीचर कोरिलेशंस पे। अगर फीचर के बीच में कोरिलेशन कम होगा, ओके, सो पीसी आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फीचर के अंदर बीच में अगर कोरिलेशन ज्यादा है तो इट इज गोइंग टू गिव यू द बेटर रिजल्ट्स, ओके। सो वहां पे आप इंडिपेंडेंट ऑफ कोल, हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें ना बहुत बड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि उसमें जब हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते थे तो हमें हर कोफिशिएंट की इंपॉर्टेंस पता चलती थी, लेकिन इसमें हम किसी भी फीचर को छोड़ नहीं रहे, हम किसी भी डेटा पॉइंट को भी नहीं छोड़ रहे, हम उसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ताकि उसकी डायमेंशन ऐसे रिड्यूस करें कि फीचर को भी हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, Yes, exactly. ना ही डेटा पॉइंट को ड्रॉप कर रहे हैं। वही मैंने कल बताया था नया कि वो जो आपकी टेक्निक थी वो फीचर सिलेक्शन टेक्निक थी। हाँ, ये फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। वहां पे फीचर को एलिमिनेट कर रहे थे, यहाँ पे आप कोई भी फीचर एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप फीचर को ट्रांसफॉर्म करके नई फीचर्स बना रहे हो, ओके। उसके बाद देन यू आर टेकिंग की जो आपको बेटर दे रहा है उसको आप कर लेते हो। यहाँ पे आपका फीचर कोरिलेशन ही बिहाइंड द सीन फीचर कोरिलेशन यूज करता है। अगर आपके फीचर में कोरिलेशन ज्यादा है, लेट्स से इसको मल्टी कोलिनिटी बोलते हैं, ओके। सो हाँ, माय बैड, मैंने पहले गलत बताया। अगर आपके इसमें डेटा में अगर मल्टी कोलिनिटी ज्यादा है तो उस केस में आपका पीसी इतना अच्छा काम नहीं करेगा। पीसी तभी अच्छा काम करता है जब आपके जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट, फीचर्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे उतने ज्यादा अच्छे पीसी बना पाएगा। अगर सिस्टम मल्टी कोलिनिटी है तो पीसी आपका इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन अभी भी आपकी बेस्ट एल्गोरिथम है, ठीक है। सो उस केस में अगर आपका ये है देन यू कैन गो फॉर द फैक्टर। एक दूसरी होती है फैक्टर एनालिसिस, ओके। तो आप दूसरी एल्गोरिथम यूज कर सकते हो अगर आप डेटा में आपकी बहुत ज्यादा मल्टी कोलिनिटी है। तो अगर मल्टी कोलिनिटी कम है तो उस केस में पीसी में आपका सबसे अच्छा काम करता है। मल्टी कोलिनिटी बहुत ही ज्यादा देन यू कैन गो फॉर द फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस देन उस केस में आपको पीसी में से जो एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं तो उस केस में आपका फैक्टर एनालिसिस आपको पीसी में से थोड़ा बेटर तरीके से काम करता है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपको या आपको क्या कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट निकाल के देगा, ओके। हाँ, जो यूज कर रहे थे वो हमारी फीचर एलिमिनेशन टेक्निक है, ये हमारी फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है बेसिकली, ओके। इसमें भी डिपेंडिंग अपॉन कि हम टॉप 10 उठा रहे हैं, कितना परसेंटेज पिक कर रहे हैं, वी आर बाउंड टू लूज सम फीचर्स, करेक्ट? वी आर बाउंड टू लूज, नो नॉट फीचर्स एक्चुअली, क्योंकि फीचर्स हम लोग फीचर को तो आप ये मान लो कि हाँ ये मान लो कि इन्फॉर्मेशन लूज कर रहे हैं हम लोग, यू कैन से इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट ये यूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। सर ये थोड़ा ब्लैक बॉक्स टाइप का है। ये ब्लैक बॉक्स टाइप का है, यू आर राइट, ये ब्लैक बॉक्स टाइप का, ओके। लेकिन फीचर एलिमिनेशन टेक्निक में ये होता है कि आपको लेट्स आपके 1000 आपके पास फीचर्स हैं और आपको बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फीचर एलिमिनेशन टेक्निक्स, लेट्स यू आर गोइंग फॉर टू यूज फॉर लेट्स से आप रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हो फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स के लिए, ओके। सो फीचर सिलेक्शन टेक्निक आप रैंडम फॉरेस्ट यूज करोगे तो वो आपको टॉप 100 फीचर या टॉप 50 फीचर, टॉप 60 फीचर्स आपको इस तरह से बता के आपको दे देगा। तो एक तरीका तो वो है कि हम रैंडम फॉरेस्ट जो बेस्ट टेक्निक्स है आपको ये फीचर एलिमिनेशन टेक्निक्स आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा है कि आपकी पीसी है, पीसी आपका बेसिकली क्या कर रहा है कि पीसी आपकी जब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब वहां पे आप जब एलिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑल टुगेदर आपकी पूरी फीचर एलिमिनेट हो रही है। यहाँ पे जब आप पीसी के थ्रू कर रहे हो तो पीसी के थ्रू आपको एक तो ये फायदा होता है कि आपकी फीचर एलिमिनेट हो जाती है। फर्स्ट थिंग तो ये कि फीचर आपकी, आप एक तरह से आपने फीचर को आपने क्या किया कि मोर और लेस आपने यू गॉट टू नो द बेटर फीचर्स, आपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एक फीचर आपकी अलग अलग आपके वेरिएंसेस ट्रैक कर दिया। दूसरा जो आपकी फीचर एलिमिनेशन टेक्निक्स थी वो आपको उसको मतलब डायमेंशन में उसको 2D में रिप्रेजेंट करना या 3D में रिप्रेजेंट करना वो फैसिलिटी आपको नहीं देती थी। तो ये पीसीए साथ के साथ आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि बेसिकली आप उसको जितना चाहो उतना कम कर सकते हो। वहां पे आप जितना चाहो उतना कम करोगे, ठीक है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन लूज कर रहे हो, ओके। यहाँ पे पीसी आपको साथ के साथ ये भी बताता है कि अगर आप पीसी कितने कौन से पीसी आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप 50% पीसी यूज करो, 6 पीसी यूज करो, 10 पीसी यूज कर रहे हो, तो आप कितनी इन्फॉर्मेशन आप बाकायदा लूज कर रहे हो, वो आपकी तरह इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं पता चलती है। पीसी आपके साथ आपको ये पूरी ईच एंड एवरी स्टेप आपको पता चलता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन आप लूज कर रहे हो, ओके। सो यू कैन आल्सो डू दैट थिंग, मतलब वही मैं कह रहा हूं, दिस इज काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स। आप फीचर एलिमिनेशन are they used in conjunction or they are used as a independent things? नहीं, कंजक्शन में आप यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर हाँ आप अगर आप दोनों कंपैरिजन देखना तो कंपैरिजन निकाल सकते हो। लेट्स से आपको कोई आपके पास बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, आप उसकी फीचर एलिमिनेशन टेक्निक पहले आप उससे रैंडम फॉरेस्ट यूज करो,
ओके रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू लेट्स से आप टॉप 50 फीचर्स निकाल लो, तो यू कैन आल्सो अप्लाई द पीसी ऑन टॉप ऑफ दैट, और लेट्स से आप टॉप यहीं से भी आप लेट्स से टॉप 50 आप पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट उठा लो, फिर दोनों कंपेयर करके देखो तो बेसिकली किसमें आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ राइट, आई डोंट नो किस पर्सन ने बोला था, बट दिस इज काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स, कि आपको पता नहीं चलेगा पीसी आपका बेटर काम करेगा वहां पे या बेसिकली आपका वहां पे वो काम करेगा, ठीक है ना, यू नेवर नो। लेकिन अगर आपको एल्गोरिथम आपको सिंपल यूज करनी है, सो देन यू कैन गो फॉर द पीसीए। पीसीए आपको एक तरीके से पीसी इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा देता है, आपको ईच एंड एवरी स्टेप आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ लूज कर रहे हो, कौन कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट आपको दे रहे हैं, और आपको 2D या 3D रिप्रेजेंटेशन आपका डाटा देता है जो बाकी आपको नहीं देते हैं। तो सर रियल वर्ल्ड में आज भी पीसीए यूज होती है? पीसीए यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। जब भी आपके हाई डायमेंशनल डेटा है तो आप हमेशा उसे डायरेक्शन ऑफ द पीसीए के थ्रू ही होता है, आप पीसीए यूज करते हो। ओके, डीप लर्निंग में भी फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड लीनियर बोथ। ये तो आपका डेटा रिड्यूस हो गया ना, उसके बाद आप सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज करो चाहे आप किसी के लिए यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। इससे डाटा आपका लेबल नहीं चाहिए, इसे आप डेटा दे दो, ठीक है, और ये आपकी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। इन द केस ऑफ जो हमारी रैंडम फॉरेस्ट है वो आपकी क्या सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। अगर आपका डेटा लेबल नहीं है तो आप फिर आप उस केस में रैंडम फॉरेस्ट लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको डाटा लेबल नहीं चाहिए, अगर लेबल्ड होगा तो भी काम कर जाएगा, लेबल को आप हटा दो, ठीक है, डाटा लेबल नहीं है तो भी आपका काम करेगा, दिस इज अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। ओके, तो दिस इज वन मोर क्वालिटी ऑफ दिस वन, इसको डेटा लेबल नहीं चाहिए होता है, लेकिन तब भी आपको बता देगा कौन सी आपका ये फीचर्स को कन्वर्ट कर देगा आपको। ओके, सो अनसुपरवाइज है वो आपकी सुपरवाइज एल्गोरिथम है सर इसलिए क्योंकि ये मैथमेटिकल है प्योरली, इट डजंट मैथमेटिकल आपकी सारी है तरीका नहीं, मतलब इट डजंट यूज एनी कॉन्टेक्स्ट, मतलब इट्स प्योरली मैथमेटिकल नंबर्स है, दैट इज व्हाई इट डजंट नीड एनी लाइक इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप बाकी के एल्गोरिथम आप देखोगे जो कि आपके फीचर डिटेक्शन में यूज होती हैं, जैसे कि आपकी एलडीए को भी हम फीचर डिटेक्शन में यूज कर लेते हैं, जो ठीक है ना, जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट है एनालिसिस जो है, लेकिन वो एक्चुअली दैट इज अ सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम जब आपकी काम करेगी तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम आपकी बेसिकली आपके जब काम करती है तो इस तरीके से काम करती है, जब भी अगर आप आपकी फीचर्स को भी रिड्यूस करेगी, समझो तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है। सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम जब भी फीचर को डिटेक्ट करेगी, ये फीचर को एलिमिनेट करेगी, तो उसका बेसिक फोकस इस चीज पर रहेगा कि फीचर इस तरीके से आपका आइडेंटिफाई हो कि क्लास को वो सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए, यानी आपका क्लासिफिकेशन सही से हो, अंडरस्टूड। तो उसका कंप्लीट फोकस इस पे होता है कि आप जब जो आपका अल्टीमेट जो आपका तरीका है कि आप सब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है वो, तो हमेशा फीचर्स को इस तरह से सिलेक्ट करेगी, टॉप 100 फीचर्स को, टॉप 50 फीचर्स को, कि अल्टीमेटली आपका क्लासिफिकेशन सही तरीके से हो। वो प्योरली क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो आपकी फीचर सिलेक्ट करके देती है। यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है क्या, किस चीज को, इसको कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये इस पे फोकस नहीं करते कि मैं ये डेटा क्लासिफिकेशन यूज करने जा रहा हूँ, उसको रिग्रेशन के लिए यूज करने जा रहा हूँ, या मैं किसी भी चीज के लिए यूज करने जा रहा हूँ, इट डजंट बॉदर अबाउट दैट। ये आपको उस बेसिस पे आपको टॉप 100 फीचर्स निकाल कर वो दे देती है। वो उसके बैकग्राउंड में ये रहता है कि मुझे क्लासिफिकेशन के हिसाब से टॉप 20 फीचर्स या टॉप 100 फीचर्स निकाल के देनी है। तो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, अंडरस्टूड? यस सर। तो इस केस में आपकी लीनियर रिग्रेशन की भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्या करोगे, आप उसको पीछे लगाओगे, आपको टॉप 50 एलसी देगा, उसका रिग्रेशन की प्रॉब्लम लगा लो। लेकिन आप यहाँ पे रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो आप उस पे रैंडम फॉरेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन वो जो रैंडम फॉरेस्ट आपको लगा के देगा, टॉप 20 फीचर्स आपको देगा या देगा, वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको देगा। तो उस केस में आपको एसवीआर यूज करना पड़ेगा, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, वो आपको फिर रिग्रेशन के हिसाब से देगा। लेकिन मोर और लेस जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है आपकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छा काम करती है जो आपकी सुपरवाइज एल्गोरिथम्स होती हैं, क्योंकि सुपरवाइज एल्गोरिथम का मतलब बेसिकली यही है जो कि आपका मोर और लेस वो क्लासिफिकेशन ज्यादा फोकस करती है। ओके, तो अनसुपरवाइज इज ऑलवेज बेटर। अगर आप देखो तो अनसुपरवाइज की जो एल्गोरिथम्स है ज्यादा हमेशा ज्यादा रिफाइन होती हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई प्री कंडीशन लेके नहीं चलती कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है या मेरी रिग्रेशन की प्रॉब्लम है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, जनरलाइज सॉल्यूशन आपको देती है। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज जो आपकी अनसुपरवाइज एल्गोरिथम होते हैं हमेशा सुपीरियर मानी जाती है एज कंपेयर टू सुपरवाइज एल्गोरिथम। इसलिए अगर आप देखोगे तो जगह को डायमेंशनल रिडक्शन में आप कभी भी रैंडम फॉरेस्ट का नाम नहीं सुनोगे, तो हमेशा आपका पीसीए का नाम ही आएगा। दैट इज द रीजन, क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंसेस भी आप पीसीए आप अब खुद भी कर सकते हो। आप डेटा सेट उठाओ, उस पर रैंडम फॉरेस्ट से टॉप 100 उठाओ और पीसी से टॉप 100 उठाओ और फिर देखो कि फिर रिजल्ट क्या आ रहा है। आप देखो पीसी वाला जो आपको रिजल्ट आ रहा है, आपको पीसी जो आपने फीचर एक्सट्रैक्शन किया है आपको बेटर रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू सर। वो तो आना ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट तो बैगिंग यूज करता है, तो रैंडमली बैग करके निकालता है ना फीचर्स को, और पीसीए हर फीचर का मतलब प्रोजेक्शन लेता है। नहीं, आप डिसीजन ट्री यूज कर लो, मतलब डिसीजन ट्री तो ठीक है नॉर्मल है, रैंडम फॉरेस्ट यूज मत करो, डिसीजन ट्री यूज कर लो। ओके, डिसीजन ट्री भी आपको दे देता है निकाल के टॉप 20 फीचर्स से टॉप 100 फीचर्स।
ओके, so yes, but you can try both of them. आप दोनों ट्राई करके देख सकते हो. ओके, जैसे कि अब इसी सीरीज में हमारी दूसरी जो आती है दैट इज एलडीए. एलडीए आपकी फीचर रिडक्शन टेक्निक्स है. एलडीए बेसिकली आप देखो दिस इज सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम. एलडीए को भी आप बेसिकली, वेयर इज एलडीए, दिस इज एलडीए, जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. तो एलडीए आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. पहली बात तो ये भी आपकी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है. इसको भी आप लेकिन एज ए फीचर डिडक्शन यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. ओके, क्योंकि एलडीए आपकी जो है बेसिकली लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है, क्लासिफाई ही करती है चीजों को. लेकिन फिर भी लोग इसको डायमेंशन डिडक्शन के लिए यूज कर लेते हैं. ओके, मोर लेस, बट पीसी इज ऑलवेज बेटर देन द एलडीए. ओके, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि बेसिकली आप यहाँ पे आप फीचर, आप इसको एसक्यूएल में अगर आप एलडीए का देखोगे तो इसमें एक एलडीए एसके लर्न, तो इसमें एक कंडीशन है. आप उसको आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा लोगे. यहाँ पे कंडीशन है कि नंबर ऑफ आपके जो कंपोनेंट होगे ना, तो आपके इस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. लेट्स से आपके पास 1000 फीचर्स हैं आपके पास, ठीक है, और लेकिन क्लासेस आपके पास 2 ही. आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है. आपकी जो आपकी क्लासेस हैं वो सिर्फ 2 ही हैं. तो उस केस में फिर आप कंपोनेंट्स को 2 से कम कर नहीं सकते हो. ये एलडी की सब प्रॉब्लम है. एलडी आपका तभी यूज होगा जब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस, लेट्स से आपके फीचर्स तो आपके 1000 हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्लास आपकी 10 है, तो 10 को 5 या 6 या 3 या 4 2 कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप उससे हमेशा नंबर ऑफ कंपोनेंट उससे कम रहेंगे. नंबर ऑफ कंपोनेंट आप 50 नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस तो ज्यादा हो गए. सो एलडीए भी आपकी फीचर उसके लिए यूज होती है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस पे उसका लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ क्लासेस से ज्यादा वो कभी भी आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट या आपके जो भी यहाँ पे बनाती है वो नहीं बना सकती. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. सो एलडीए आपका डिफरेंट तरीके से काम करती है, और एलडीए इज प्योरली क्लासिफिकेशन टेक्निक. उसको भी आप डायमेंशन डिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, बस अनटिल एंड अनलेस जो आप डायमेंशन जितना रिड्यूस करना चाहते हो नंबर ऑफ क्लासेस से कम है. नंबर ऑफ क्लासेस से ज्यादा पे आप नहीं कर सकते उसको. ओके, ये डिफरेंट तरीके से काम करती है. पीसीए में आप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालते हो. एलडी क्या करती है, एलडी इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन ट्राई करती है. दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये. तो एलडी क्या करती है, लेट्स गो इट, you can compare LDA and PCA. लोग LDA बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड. सो LDA क्या है कि LDA PCA आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनाती है विद द मैक्सिमम वेरिएंसेस, जो मैक्सिमम वेरिएंस आप कैप्चर कर पाओ. LD क्या करती है, LD लेट्स से 2 क्लासेस हैं, क्योंकि सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम से पता है कि 2 क्लासेस हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2. लेट्स से दिस इज क्लास A एंड क्लास B. सो इट विल ट्राई टू टेक द प्रोजेक्शन इन सच ए वे कि बेसिकली वो प्रोजेक्शन इस तरीके से लेने का ट्राई करती है जो कि क्लास सेपरेशन में उसको हेल्प करे. ओके, वो ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे आप हो सकता है मैक्सिमम वेरिएंस आपको लेट्स यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन वो इसको नहीं लगेगा. वो प्रोजेक्शन लेगी जिस प्रोजेक्शन में उसको क्लास को डिसीजन बाउंड्री बनाने में उसको हेल्प मिल रही है, उसको क्लासिफिकेशन करने में उसको ज्यादा हेल्प मिल रही है. तो वो वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट या वो वाला आइगन वेक्टर सेलेक्ट करेगी जिससे कि उसको क्लासिफिकेशन में उसको आसानी होगी. वो जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट इस बेसिस पे करता है कि जहाँ पे उसको मैक्सिमम वेरिएंस मिल रहा है. तो दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली फोकस होता है क्लासिफिकेशन पे. तो क्लासिफिकेशन करती है एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू मेक द क्लासिफिकेशन फॉर यू. ओके, सो ये क्या करती है, ये बेसिकली मीन, इसका मीन और इसका मीन, इसका फंडा होता है कि ये मीन आपका मैक्सिमम होना चाहिए, इनके बीच के डिस्टेंस. ओके, और ये जो सारे डाटा पॉइंट्स हैं, इंटरनल मीन आपका मिनिमम होना चाहिए, ये मीन आपका मिनिमम होना चाहिए एक क्लास के अंदर, और इंट्रा क्लास मीन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए. इस प्रिंसिपल पे आपका एलडी काम करता है. इस बेसिस पे आपका ये प्रोजेक्शन ढूंढता है. ठीक है, कि जो सारे पॉइंट एक क्लास में आ रहे हैं वो तो बेसिकली उसके लिए मिनिमम आपका मीन मिनिमम होना चाहिए, और अगर जो अलग अलग क्लास है जो उनका मीन है उनके डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, उनका डिफरेंस. तो इस बेसिस पे क्या करता है कि आपका प्रोजेक्शन ढूंढता है. वो आपके फाइनल प्रोजेक्शंस बनते हैं, उसमें आपके 10 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, व्हाटएवर, कितने भी ले लो आप. ओके, दिस इज फॉर्मूला कि आपका म्यू माइनस मी उसका आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 2 क्लासेस का जो मीन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इनका डिफरेंस. ओके, और एक सिंगल क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मिनिमम होना चाहिए. ये आइडियली शुड बी लार्ज एंड दिस आइडियली शुड बी स्मॉल. इस प्रिंसिपल पे आपका एलडीए काम करता है, लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव. बट दिस इज नॉट अ, सो लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव आपके बिहाइंड दिस इज आपकी नेव वाइज थ्योरम यूज करता है, नाइव वाइज. आई कैन आल्सो गिव द मैथमेटिकल प्रूफ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, ये भी आपकी बिहाइंड द सीन्स आपकी नाइव वाइज थ्योरम यूज करता है, और नाइव वाइज थ्योरम यूज के हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करता है कि बेसिकली दोनों क्लास की, जो क्लास ए और क्लास बी के जो आपके
आइटम्स है उनकी होने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमाइज हो जाए. ओके, सो बट LDA इज नॉट अ actually is not a dimension reduction, but you can use it. But PCA is always superior to LDA. Okay, so whenever you want to do the dimension reduction, always go for the PCA. Okay, so don't get confused. LDA is not a dimension reduction technique, but you can use it. Okay, both are using the eigenvector and eigenvalues, but their principally the algorithm is different. And LDA is a supervised learning algorithm, and PCA is an unsupervised learning algorithm. Okay, so LDA से आप LDA just like any other algorithm, like your logistic regression or your random forest, जो भी आपकी classification का algorithm है, LDA just like that kind of algorithm, but इसे आप dimension reduction के लिए भी use कर सकते हैं. Okay, तो आपका प्रिंसिपल क्या है? नाउ दैट की हम अब निकालते कैसे हैं? अगर हम उसको मैनुअली में देखना हो कि मुझे पीसी निकालना कैसे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये सब छोड़ो, हम सब देख लिया. सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द, ये आपका डेटा है. ओके, दिस डेटा के ऊपर आपको बेसिकली जिसको आपकी डायमेंशन रिड्यूस करनी है आपको. ओके, द फर्स्ट आपके पास ये क्या करेगा, लेट से आप इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, दिस इज योर 5 डायमेंशनल डेटा. दिस इज 5 डायमेंशनल डेटा. ओके, आपके साथ डेटा 5 डायमेंशन में, दिस इज द 4 और 5 प्लॉट्स. सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कंप्लीट डेटा का आप क्या करो, कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालोगे. ओके, जो हमने देखा कैसे निकालते हैं, आप उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाओगे. आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स बन के आ गया आपका ये 5x5 साइज का, क्योंकि आपके डायमेंशंस 5 है. अब आपका 5x5 साइज का आपका डायमेंशंस आ गया, परफेक्टली फाइन है. आप क्या करोगे उसके ऊपर, आप इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसमें आप निकालोगे यहाँ पे इसका आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज. यू विल फाइंड आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस कोवेरिएंस मैट्रिक्स. ओके, तो वो आपके यहाँ पे आ गए. दिस इज योर आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज. ओके, अगर लेट्स से मेरे पास टोटल 5x5 साइज का, तो मैक्सिमम आपके 5 आइगन वेक्टर्स आएंगे, 5 आइगन वैल्यूज आएंगे. ओके, और आपने इसको शॉर्ट कर दिया. अब लेट्स से आपको टॉप 2 या टॉप 3 चाहिए, तो आप टॉप 2 सिलेक्ट कर लो. टॉप 1 चाहिए, टॉप 1 सिलेक्ट कर लो. लेट्स से मैंने टॉप 2 सिलेक्ट किए हैं, टॉप 2 आपने सिलेक्ट कर लिया, आपकी टॉप 2 फीचर्स हो गई विद द प्रोजेक्शंस. या आपका डेटा जो है आपका 2D में रिप्रेजेंट हो गया. आपके पहले 5 फीचर्स थे, अब आपके 2 फीचर्स रह गए. 1 फीचर, 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट और 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट 2. अब कंप्लीट डेटा आपका क्या होगा, ये 2 डायमेंशन में आ गया. नाउ इट विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस, और दिस इज योर स्मॉल टेबल विद द 2 फीचर्स ओनली. ओके, सो ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स के थ्रू आप निकालते हो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स. तो उसके निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जनरली इसको जो निकाला जाता है वो आप निकालते हो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के थ्रू. तो सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन आपके लिए काम बहुत आसान कर देता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना. और ये कैसे करता है, क्योंकि एसवीडी क्या करता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है x, तो आप उसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. इट विल बी आई थिंक xtx and this is your sigma and this is xt. I think so. This is the one. नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने. This is xt sigma and xtx. ये आपके 3 डिफरेंट मैट्रिक्स बन जाते हैं. ओके, ये आपका सिग्मा मैट्रिक्स है, जो कि बेसिकली आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें आपकी सारी की सारे आइगन वैल्यूज आ जाती हैं, λ1, λ2, λ3, और ये आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड होती हैं. λ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन λ2, λ3, λd तक आपकी आएंगी. ये अगर आप देखोगे दिस xt, ये आपका होता है आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड. तो हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स मुझे निकालना है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स से मुझे क्या निकालना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालने हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जो भी मैट्रिक्स होता है x, उसका पहले उसमें से उसका मीन माइनस कर देता हूँ, x माइनस म्यू. ये मेरे पास ये आ गया. ओके, x माइनस म्यू को मैं हमने देखा था, x माइनस म्यू को मैं x माइनस म्यू के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली कोवेरिएंस मैट्रिक्स. ओके, तो दिस माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ, दिस माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स. ओके, तो मेरा जो x माइनस म्यू जो मेरा अब आया है, ये x माइनस म्यू, इस x माइनस म्यू का मैं क्या करता हूँ, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस. जो मैंने x से x माइनस म्यू किया, इसका मैंने सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन कर दिया. अब मुझे क्या चाहिए, xxt मुझे क्या निकाल के देगा, इसका, ये एक्चुअली मेरा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, दिस इज माय कोवेरिएंस मैट्रिक्स. तो xxt क्या देता है मुझे, आइगन वेक्टर्स देगा, ये मुझे आइगन वैल्यू देगा, और वही मुझे चाहिए होती है, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू. तो मैं सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज करके आई कैन फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस
एनी गिवन एक्स मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स में एक्स माइनस म्यू किया मुझे, और एक्स माइनस म्यू को एक्स माइनस म्यू के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया, कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स का मैंने एसवीडी कर लिया यहाँ पे, जो बहुत आसान होता है निकालना, क्योंकि एसवीडी के साथ सबसे अच्छी बात है कि ईच एंड एवरी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी साइज को कैसा भी हो, उसका हमेशा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमेशा पॉसिबल होता है। कभी ये नहीं होगा कि आपको उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आपको ना मिले, तो हमेशा आप उसको 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हो, ए बी सी में, तो आपको 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इजियर वे, आपने कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट आपको आइगन वेक्टर्स देगा, सेकंड पार्ट आपको आइगन वैल्यूज देगा, वही आपको चाहिए। तो बिहाइंड द सीन जो आपका sklearn में आप यूज करते हो, पीसी जो आपका यूज करता है, पीसी आपका बेसिकली यही यूज करता है आपका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन टू फाइंड द आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द पीसीए। पीसी ऐसे काम करता है। आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सी डायमेंशन मेरे लिए बेस्ट है, कितने पीसीज में लूं, तो आप हमेशा एक्सप्लेन वेरिएंस, ये आपका एक्सप्लेन वेरिएंस आपका रिटर्न करता है, वो आपको बताता है कि ईच एंड एवरी प्रिंसिपल कंपोनेंट आपका कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहा है। ओके, या आप क्यूमुलेटिव वेरिएंस क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो, ये आपके डायमेंशंस हैं। तो आपको यहाँ से जहाँ पे आपके एल्बो आती है, एल्बो, तो एल्बो इज ऑलवेज अ गुड वे टू मेक अ कट। जहाँ भी आपका एल्बो आ रही है, एल्बो से आप कट कर जाओ यहाँ से, तो आप देखोगे 150 तक आपको मैक्सिमम मिल रहा है, अराउंड 0.9। तो आप जितना ही बढ़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके 150 डायमेंशन भी आपको ऑलमोस्ट 90% आपको वेरिएंस दे रही है। तो आप यहाँ से आप उसको कट कर सकते हो और बाकी को आप छोड़ सकते हो। यू कैन ऑलवेज मेक अ ग्राफ ऑफ इट। ओके, ऐसे ही आपकी एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं TSNE टेक्निक। TSNE टेक्निक भी आपकी क्या करती है, वो भी आपकी डायमेंशन को रिड्यूस करती है, बट दैट इज एक्चुअली प्योरली यूज्ड ओनली फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। ओके, तो PC इज ऑलवेज बेटर देन TSNE, क्योंकि TSNE की जो एल्गोरिथम है बेसिकली वो आपको बेसिकली फीचर रिडक्शन तो वो भी करती है, लेकिन इतने अच्छे फीचर क्रिएट नहीं कर पाती। सो दैट इज गुड फॉर ओनली फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। TSNE हमेशा आपका विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है, और PC आपका हमेशा फीचर डायमेंशन के लिए, सॉरी डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये कर्नेल, ये SVM वाला कर्नेल है क्या? वो वही कर्नेल है। अभी हम ये मान के चले थे कि बेसिकली आपका जो भी डेटा है, ओके, वो आपका डेटा जो है वो लीनियरली सेपरेबल है। ओके, हम ये कंसेप्ट मान के चल रहे थे, अगर आपका डाटा लीनियरली सेपरेबल है, लेकिन डेटा लेट्स आपका इस तरीके से है, दिस काइंड ऑफ डेटा यू आर हैविंग। ओके, डेटा आपका इस तरीके से है, ये और ये लेट्स से तीन क्लस्टर्स है, ओके, फॉर एग्जांपल। तो अब इस केस में क्या करेगा, आपका नॉर्मल पीसी अगर आप बनाओगे तो वो इनको अलग अलग नहीं कर पाएगा, इसको बेसिकली सुपर इंपोज करने में उसको बहुत डिफिकल्ट होती है। ओके, ये उस पैटर्न को लर्न नहीं कर पाता अगर इस तरह का डेटा है, क्योंकि वो ये मान के चलता है नॉर्मल पीसी की आपका जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल है, डाटा आपका लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो उस केस में यू आर गोइंग फॉर द कर्नल पीसी। कर्नल पीसी क्या करता है, कर्नल पीसी इस तरह के डेटा को अलग अलग कर देता है। ओके, तो आप देखो तो कर्नल, अगर आप नॉर्मल पीसी बनाओगे तो नॉर्मल पीसी का आउटपुट भी आपको यही मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही, जिसमें डेटा आपके सारे क्लास आपके सेपरेबल नहीं है। ओके, वो क्या करता है, लीनियर भी आप देखो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा इसको। अब आप इसको आराम से लीनियर सेपरेबल, क्योंकि अगर आपको याद होगा एसवीएम में कर्नल क्या करता था, अगर कोई भी डेटा आपका लीनियर सेपरेबल नहीं है तो उसको क्या करता था, हाई डायमेंशन में क्या करता था, उसको लीनियर सेपरेबल कर देता था, राइट। तो कर्नल पीसी भी एग्जैक्टली यही करता है। अगर आपका डाटा तो सर इसमें मतलब पहले हम डायमेंशन घटा रहे हैं फिर डायमेंशन बढ़ा रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली, घटा बढ़ा हम कुछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसको फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फीचर को ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग फिर उसके फीचर को रिड्यूस कर रहे हैं, ये है फंडा। फीचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि लीनियर सेपरेबल हो जाए, जिससे कि जो, क्योंकि अब समटाइम समझो अभी तक जो मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट बने थे वो लीनियर थे, तो मैं सारा का सारा वेरिएंस में लीनियर कंपोनेंट पे कैप्चर कर रहा था। ओके, अब इस वाले का मैं कैसे कैप्चर कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ऐसा बना दूं तो मैक्सिमम वेरिएंट मेरे लिए कैप्चर कर सकता है बाहर वाले का, लेकिन ये वाला इतना मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर नहीं कर पाएगा। मेक सेंस? अगर मेरा डेटा है इस तरीके से, ओके, अगर उसमें लीनियर कंपोनेंट बनाता हूं तो आप देखोगे इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दूसरे को सुपर इंपोज हो जाएंगे। अगर जो मैं अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर मेरा इस तरीके से होगा तो मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर कर लेगा। मेक सेंस? ओके, तो उस केस में कर्नल पीसी क्या करता है, आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनते हैं वो आपके बेसिकली हाई डायमेंशन में बनते हैं, मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर करते हैं। ओके, वो सिर्फ आपके फिर लीनियर पीसी नहीं होते, वो आपके कर्नल पीसी बन जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड द कांसेप्ट? अगर आपका डाटा लीनियर सेपरेबल नहीं है तो देन गो फॉर द कर्नल पीसी, क्योंकि कर्नल पीसी उस केस में आपका ज्यादा अच्छा काम करता है, आपको बेटर आपको वेरिएंस निकाल के देता है, क्योंकि आपके लीनियर आपकी पीसी आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको इतना अच्छा वेरिएंस नहीं दे पाएंगे, तो कर्नल पीसी आपको निकाल के दे देगा। 1 मिनट।
ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? दोनों लगा के देख सकते हो। सो आप ये देख सकते हो, ये आपका ओरिजिनल स्पेस है। अगर आप नॉर्मल पीसी लगाओगे तो आप कैसा आएगा, लेकिन अगर आप कर्नल पीसी लगाओगे तो आपको देखो दोनों को सेपरेट कर देता है क्लासेस को। जब 2D आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये आपको अलग अलग नहीं कर पा रहा क्लासेस को, क्योंकि बेसिकली इसने वो वेरिएंस कैप्चर ही नहीं किया है, ये आपका कैप्चर कर लेता है इस तरीके से। ओके, so this is for kernel PCA and this is for LDA. Now we can see the code, and code is very simple, and there is the code. Let me find out the code first. सर वैसे मैं एक चीज से अभी भी वो मतलब आपने एक चीज लिखी थी कि ये तभी यूज होता है पीसी जब मल्टी मतलब कोरिलेशन ज्यादा ना हो, करेक्ट? तो मैं इसको मतलब अगर मुझे पूछना किसी इंटरव्यू में जस्टिफाई कैसे करूंगी, क्योंकि हम इसमें डील करते हैं कोवेरिएंस से, राइट? तो मेरे को मैथमेटिकली शायद मेरा ये अंडरस्टैंडिंग गैप है कि हाउ डज कोवेरिएंस इम्पैक्ट द कोरिलेशन, या फिर अगर कोरिलेशन ज्यादा होता है तो क्या कोवेरिएंस कम होता है? क्योंकि देखो फंडा ये कि कोरिलेशन का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये मान के चलो कि अलग अलग फीचर्स का अलग अलग फीचर्स को हम बेसिकली अलग अलग कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर दो फीचर अगर आपकी कोरिलेटेड होंगी तो उस केस में जब मैं अलग अलग उसको लेने का ट्राई करूंगा तो उसका इम्पैक्ट इधर भी आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट इधर भी आएगा। मैं सबको अलग अलग करना चाहता हूँ। तो कोरिलेशन में आपको कोवेरिएंस का मतलब ये होता है कि कोवेरिएंस एक डिफरेंट हो गया। कोरिलेशन का मतलब ये कि दोनों फीचर आपके रिलेटेड है एक तरीके से। ओके, दो फीचर आपके रिलेटेड होंगे तो बेसिकली आप उसको एक तरीके से सेपरेट नहीं कर पाओगे डेटा को, क्योंकि दोनों सेम तरीके से वेरी कर रही होंगी, ठीक है ना? तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आती है पीसीए में। अगर आप पीसीए का यहाँ पे देखोगे, यू जस्ट गो फॉर पीसीए का आप एसक्यूएल में जाके पढ़ना है, इट विल गिव यू द जस्टिफिकेशन फॉर द सेम पीसीए एसके लर्न। ओके, अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है शायद। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो पीसीए आपको कहता है कि ये आपका सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज करता है। हमने भी देखा कैसे यूज कर रहा होता है। और ये दिस इज यूजर गाइड, एंड इफ यू कम हियर कम डाउन यहाँ पे आपका आता है दैट इज कर्नल पीसीए, ठीक है, दैट इज फाइन। बहुत सारे इसके वेरिएशंस हैं, a lot of things are there। सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? अभी तो शेयर की मैंने। नहीं ओह दिख रही। सॉरी, अभी शेयर नहीं हुई, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आपका कम है, कम 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 कम, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस के फैक्टर एनालिसिस आपका, दिस इज फैक्टर एनालिसिस एंड यू कम विद द फैक्टर एनालिसिस। एक मिनट, सिंगल without loss of genetic, the factors are listed along the Gaussian zero mean unit variances. This सही पे कहीं था, I just पीसी तब अच्छा काम करता है क्योंकि पीसी के साथ प्रॉब्लम है, अगर आपकी वो ज्यादा होगी तो अच्छा काम नहीं करता है। तो दिस इज एल्गोरिथम। ओके, मैं आपको भेज दूंगा। ये देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ फैक्टर एनालिसिस और पीसी इज दैट इट कैन मॉडल द वेरिएंस इन वेरी डायरेक्शन ऑफ इनपुट स्पेस इंडिपेंडेंटली। होमोस्टैटिक नॉइज, अगर आपकी होमोस्टैटिक नॉइज है, हेटेरोस्टैटिक जिसको हम बोलते थे, ओके, हेटेरोस्टैटिक नॉइज, तो उस केस में आपका ये ज्यादा अच्छा काम करता है। आपके सिस्टम में अगर नॉइज है तो हेटेरोस्टैटिक नॉइज हम किसको बोलते थे? व्हाट वाज द हेटेरोस्टैटिक नॉइज? एनीवन रिमेंबर? हेटेरोस्टैटिक नॉइज आपकी वो होती है कि आपकी जो एरर है वो एरर का वेरिएंस आपका सेम नहीं है। इफ यू रिमेंबर हेटेरोस्टैटिक नॉइज, तो अगर आपके डेटा में हेटेरोस्टैटिक नॉइज है तो आपका फैक्टर ज्यादा अच्छा काम करेगा, आपका पीसी अच्छा काम नहीं करेगा। ओके, तो इट गोस फॉर वेरी, यानी कि आपका एरर का वेरिएंस सेम नहीं है, एरर शुड बी सेम। अगर सिस्टम में आपकी नॉइज है और आपकी नॉइज अगर आपकी हेटेरोस्टैटिक नॉइज है, देन यू गो फॉर द ये मल्टी कॉर्नलिटी का कांसेप्ट। आई विल मैं आपको भेज दूंगा, यही कहीं था इसमें, ठीक है ना? सो लेट्स सी द कोड, आई विल शेयर यू नेहा, ठीक है? ओके, सो ये आपका लीनियर अलजेब्रा है, दिस इज लीनियर अलजेब्रा कह रहा हूं मैं क्या, दिस इज योर कोड, ओके।
और मैं यहाँ पे आपका डिसेंट्री है क्या, व्हाट इज दिस, आई एम टेकिंग द डाटा फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है आपका, ओके, आई एम जस्ट रनिंग इट। और इसमें आपका जो डेटा है, दिस इज आपके पास जो कॉलम है, वी आर हैविंग 569 एंट्रीज, आपका पास 32 कॉलम्स हैं। सो इस 32 कॉलम से हम इस पर काम कर सकते हैं। 569 एंट्रीज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डेटा आपका इस तरीके से है, आपका डायग्नोसिस, रेडियस, पेन, टेक्सचर, जो भी इसमें कहानियाँ, किससे कहानियाँ हैं, तो आपका ये आपके ट्यूमर्स का साइज और ट्यूमर की जो भी है वो सब क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिसके वजह से आप डिसाइड करते हो कि वैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। ओके, सो इसमें से आपका मैंने क्या किया, इसमें डीएफ जो आपका डायग्नोसिस था, एम और एम, मीडियम और व्हाटएवर, ये आपकी ये एम, और आप देखोगे तो इसका जो है ये मैलिग्नेंट और बेनाइन शायद। यस एग्जैक्टली, मैलिग्नेंट और बेनाइन, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें से मैंने उसको एफ डायग्नोसिस को मैंने एम को 1 कर दिया, मैंने बी को 0 कर दिया। ओके, ये मेरा आपका टारगेट कॉलम बन गया, और मैंने एक्चुअल में से आपका डायग्नोसिस ड्रॉप कर दिया, दैट इज माय पैरामीटर्स, माय फीचर्स बन गए। तो मेरे एक्स में मेरे फीचर्स आ गए, डी एफ डायग्नोसिस में मेरे हुए। तो पीसीएफ कैसे काम करता है, लेट्स से स्टैंडर्ड स्केलर। तो सबसे पहले एक तो पीसी के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसको डेटा जो है स्केल फॉर्म में चाहिए होता है। ओके, डेटा को आपको स्केल करना पड़ेगा। सो आप कोई भी आप एलडीए यूज कर रहे हो या आप पीसी यूज कर रहे हो या जो भी आप डैमेज डिटेक्शन फीचर या एल्गोरिथम यूज करोगे, तो मेक श्योर कि आपका डाटा स्केल्ड हो। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक द डाटा स्केल्ड, कि आपका आप बना ये सारी एल्गोरिथम आपकी बहुत ज्यादा वेरी करती है अगर आपका डेटा जो है स्केल्ड नहीं है तो। ओके, दे नीड द स्केल डेटा। तो डेटा को आपने स्केल कर लिया, फिर मैंने पीसीए डिकम्पोजिशन डॉट पीसीए कॉल करा, मैं कंपोनेंट 30 कर रहा हूँ। 30 इसमें टोटल 30 है, शायद कितने कॉलम है, 30 कॉलम है, और 30 मैंने उस पर प्रिंसिपल कंपोनेंट मैंने बना लिए। फिर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो फिर ट्रांसफॉर्म करते ही इसने क्या किया कि जितने भी कंपोनेंट उसको दूंगा उतने ही कंपोनेंट को पीसी बना देगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अल्टीमेटली जो आपको डेटा सेट आएगा वो आपका फिर आपकी 6 डायमेंशन का होगा या 8 डायमेंशन का होगा, जिसमें मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट में बनाना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 10 दे दिए, तो जो आपका यहाँ पे डाटा आएगा एक्सपीसी स्केल, ये आपका 10 डायमेंशन का होगा। लेट्स रन इट। तो रन होने के बाद अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ये कैन कंपोनेंट 30 मस्ट बिटवीन 0 एंड दिस। अब ये क्या कहानी है इसमें, 0 and 1 and components PCA transform X scaled. Okay, this is good. अच्छा, ऊपर अभी क्या रन नहीं हो गया, ये रन नहीं है क्या? Okay, so this is हमने क्या किया, टोटल 30 कंपोनेंट्स बनाए हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। उसके बाद मैंने क्या किया, डाटा को मैंने क्या किया, पीसी को डाटा को मैंने कंप्लीट उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं स्केलेट प्लॉट बना रहा हूँ, और इसमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ मैं। टोटल मैंने 30 बनाए हैं, ठीक है, पीसीए से। स्केल्ड में मेरे टोटल क्या 30 फीचर्स आए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 यूज कर रहा हूँ, टॉप 2, 0 and 1। टॉप फर्स्ट 2 कॉलम यूज कर रहा हूँ, 0 और 1, यानी 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, और ये मेरा टारगेट कॉलम है। उसके बेसिस मैंने क्या कर दिया, आपका स्केलेट प्लॉट बना दिया। तो ये पीसी के टॉप 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट ने मुझे क्या कर दिया, मेरे 2 डायमेंशनल प्लॉट बना के मुझे दे दिया है। तो सर ये अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हाईएस्ट वेरिएंस से लोवेस्ट वेरिएंस की तरफ को देता है क्या, मतलब पीसी कंपोनेंट? हाँ, ये हाईएस्ट 1 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, इससे सब आपका देखता चला जाता है। तो हाईएस्ट जो आपका 0 है। ओके, ठीक है। तो 0 1 इसने आपका, आप देखो दोनों क्लासेस ने आपकी मोलस इस तरीके से आपका ऐसे 2 डायमेंशन आपका प्लॉट कर दिया है। ये आपकी फर्स्ट क्लास है या आपकी सेकंड क्लास है। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 3D में इसको प्लॉट कर सकते हो। मैं 3 यूज कर लेता हूँ, 0 1 and 2, तो आपका जो बनेगा वो 3D में बनेगा। ये आपका 3D में बन गया। ओके, 2 क्लासेस आपको 3D में दिखा दी है, 4D में आपको दिखा नहीं सकता, दिस इज इन 3D। ओके, आपके अंदर ये वो होता है इसका, आप एक्सप्लेन वेरिएंस निकाल दो, तो आपको बता देगा कि ईच एंड एवरी पीसी आपको कितना वेरिएंस दे रहा है। तो आप देखो P1 आपको 13.3 दे रहा है, P2 5.7, 2.82, ये आपके सारे फीचर्स जो ईच एंड एवरी ने कैप्चर किए हैं। और लास्ट में आप देखो 27, 28, 29, 30 आपके यूजलेस हैं, उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 26 तक ये मैक्स 26 नहीं आपको टोटल वेरिएंस आपको दे दिया है। ओके, तो मैक्स अगर आपको यूज करना है तो 26 आपका 100% आपका वेरिएंस कैप्चर कर लेंगे। ओके, this is your cumulative. Okay, this is your explained variance and this is your cumulative variance, variant ratio, कि आपका कितना रेशो है। तो आपके P1 आपका 40%, 44% कर देता है, ये आपका 0.91%। तो आप देखोगे तो P1 ही आपका 45, अगर आप टॉप ये 8 भी उठा लोगे, तो ये 9 भी उठा लोगे, 10 तक भी उठा लोगे, तो आपको ऑलमोस्ट आपका आई थिंक काफी ज्यादा आप कहीं से आपका 60-70% आप कहीं से आ जाएगा।
आई थिंक ज़्यादा आ जाएगा आपका 44 और 19, 54, 56 अराउंड 70% आपका टॉप 10 से आपका जाएगा। ओके, दिस इज एक्सप्लेन वेरी वेल, आपने इसका परसेंटेज निकाल लिया। और लेट्स से मुझे पता करना चाहता हूँ कि मेरे लिए विच वन इज द बेस्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने इससे ग्राफ बना लिया मैंने सिंपल, और ये ग्राफ इसने मुझे निकाल के दे दिया। तो आप ये यूज कर सकते हो, आप देखोगे तो आप मोर लेस आपका ये, या तो आप ये एल्बो यूज कर लो, आप 6, आपको मैक्सिमम 90% वेरिएंस आपको 6 से मिल रहा है। अगर आप 50 थोड़ी बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हो, आप यहाँ पे और भी ज्यादा लेना चाहते हो तो आप 15 यूज कर सकते हो, तो 15 आपको ऑलमोस्ट 99% आपका वेरिएंस दे देगा। ओके, तो आप जो लिमिट ले सकते हो आप एल्बो से ले सकते हो, ठीक है। ये आपको मोर लेस आपका 6 कंपोनेंट आपको बेटर, आपको 90% आपको वेरिएंट आपको कैप्चर करके दे रहे हैं। ओके, सो यू कैन ग्राफ, आप एक्सप्लेन रेशियो को मैंने क्या किया, उसको जस्ट मैंने ये बनाया इसको ग्राफ, और कुछ नहीं किया मैंने। ओके, उसके बाद आप देख भी सकते हो कि हमने क्या किया कि ये मैंने फिट कर दिया था इस स्केल को, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल मेरा डेटा बन के आया, मेरा डेटा कैसे बन के आया। ये मेरा डेटा बन के आया, जो मेरे 30 फीचर्स मैंने बनाई है, 30 फीचर्स, वो डेटा आपको ऐसे दिखाई देगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज योर कंप्लीट 30 डेटा। ओके ओके, अब लेट से मैं क्या करता हूँ, अपने मॉडल को लेट से मैं एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेता हूँ, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट डेटा पे अप्लाई कर रहा हूँ एस स्केल पे। ओके, इसमें मैंने अभी तक उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ओके, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया कंप्लीट डेटा पे, तो मेरे स्कोर आया 99.7। ओके, 99.7% एक्यूरेसी आ रही है आपकी, जो आपका एक्यूरेसी आ रही है, दिस इज व्हाट इज कमिंग, इट इज कमिंग योर AUC स्कोर आपका 99% आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक्यूरेसी आपकी 98% आ रही है, अब मैं इसको 6 कंपोनेंट पे उसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, decomposition.pca नंबर ऑफ कंपोनेंट 6, और मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरे पास फीचर्स कितने हो गए, सिर्फ 6 फीचर्स हो गए। अब मैं उसको पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाता हूँ, जो मेरे पास सिर्फ 6 फीचर्स है, पहले पूरे कंप्लीट फीचर्स थे, ठीक है, अब 6 फीचर्स हैं। लेट्स रन इट। तो मोलेस आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, आप देखोगे तो अभी भी स्कोर मेरा 99.5 है, पहले मेरा कितना आया था स्कोर 99.7। सो कोई फर्क नहीं, मैंने आप देखो, जबकि मैंने फीचर्स मैंने ऑलमोस्ट 30 से 6 कर दिए, लेकिन फिर भी आपका स्कोर देखो तो आपका 99.5% आएगा ये इंडक्शन करने के बाद भी। यानी कि आपकी जो नॉइजी जो आपकी फीचर्स थी वो जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, हो सकता है बहुत सारी नॉइजी फीचर्स भी हों जिसकी वजह से आपका मॉडल हो सकता है ओवरफिट कर रहा हो, तो एक तरीके से आपका पीसी आपकी नॉइज को भी डिलीट कर देता है कि ऐसी फीचर जो बेसिकली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है, नॉइजी फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपका मॉडल ओवरफिट होता है, तो डिलीट कर दिया। आप देखोगे तो 6 के बाद भी 99% स्कोर आपका मिल रहा है आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज पीसीए फॉर दैट डायमेंशन रिडक्शन, और बहुत ज्यादा फर्क आपका आउटपुट में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे फैक्टर एनालिसिस आप यूज कर सकते हो अगर आपके डेटा में हेटेरोस्टैटिक नॉइज है तो, और मोरलेस आप रन करोगे तो इसके मोरलेस सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। ओके, इसका इसको थोड़ा सा कम आएगा आपका। दिस इज योर एलडीए, जो मैं एलडीए की बात कर रहे थे, हमने पीसी यूज किया। एलडीए आपकी बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन की एल्गोरिथम है सिंपली, ठीक है ना, लेकिन आप इसको बेसिकली डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ मैं यूज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी बाइनरी क्लास की एल्गोरिथम है, तो मैं उससे कम उसको कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं इसको उस पे लगाऊंगा किस पे, आइरिस डाटा सेट पे, तो मैं एलडीए को यूज कर सकता हूँ, उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन एलडीए यहाँ में क्लास ही मेरी बाइनरी है, तो उससे कम इसको कर नहीं सकता। ओके, सो दिस इज योर, मैंने उठाया आपका लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। दोनों में सिंपल एक सा फर्क है कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस ये मान के चलता है कि जो आपकी जो दोनों क्लासेस हैं उनका कोवेरिएंस सेम है। ओके, और क्वाड्रेटिक ये मान के चलता है कि दोनों कोवेरिएंस सेम नहीं है, बस ये फर्क होता है। क्वाड्रेटिक आपका बेटर रिजल्ट आपको देता है, ये मान के चलता है कि आपका लीनियर डेटा है, ये मान के चलता है कि डाटा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उस केस में क्वाड्रेटिक आपको मुझसे लीनियर से बेटर रिजल्ट देगा। सो ये मैंने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस लगा दिया और मैंने एस स्केल्ड। अब आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने, ये मेरी सुपरवाइज एल्गोरिथम है, तो वहाँ फिट करते हुए सिर्फ मैंने एस स्केल दिया था, यहाँ पर मेरे को एस स्केल भी देना और टारगेट वैल्यू भी देनी है, उस हिसाब से क्या करेगा मॉडल को फिट करेगा। सो आई जस्ट रन इट और रन इट। अब इसको 99.6% इसने मुझे एक्यूरेसी दे रही है, जिसमें एलडी ने खुद से रन किया है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या उठाया, व्हाट आई हैव टेकन दिस कंप्लीट डाटा सेट, इसने एलडी को ट्रेन किया है, यानी कि इसने जैसे 30 फीचर्स थे तो 30 इसने कंपोनेंट्स बनाए होंगे, 30 कंपोनेंट के ऊपर से मॉडल को ट्रेन कर दिया है इसने, और इसमें फाइनली इसने क्लासिफिकेशन लगा और तो 99.6% आपकी एक्यूरेसी आ गई है। ओके, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब मैं फीचर इससे कम कर ही नहीं सकता, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर मैं इसको आइस डाटा सेट लगाऊंगा तो आप यहाँ डाल सकते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल टू 3 या 2,
ओके तो उस केस में आपको बताया था कि 2 पे भी कितना अच्छा काम कर रहा है, फिलहाल तो सारे यूज कर रहा है। ओके LDAT स्कोर आप क्वालिटी पे रन करोगे तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा, एवरीथिंग इज सेम। ओके 99.53 that uses wave. This is your TSNE. TSNE आपका बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है, आप इसको डायमेंशनल डिटेक्शन के लिए यूज मत करना क्योंकि आपके अच्छे फीचर्स नहीं क्रिएट करता है। तो इट इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस। अगर आपको 2D में डाटा देखना था आप TSNE से चेक देख सकते हो और TSNE आपको दे देंगे। सो यू कैन रन दिस, आपको तीनों कंपैरिजन आपको दिखा देगा। दिस इज ये आपका पीसी ने बनाया है, ये आपका फैक्टरेंसिस ने बनाया है, ये आपका TSNE ने बनाया है। ओके देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस इसलिए है कि बेसिकली अभी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम नहीं है प्रिंसिपल एल्गोरिथम, तो आपकी क्लासेस आपको अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। ओके ठीक है TSNE आपको ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज बेटर टेक्निक। ओके अगर आपको डेटा को एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन देखना है मल्टी डायमेंशन का एक्चुअली में, तो आपका डाटा एक्चुअली में ऐसा है, पीसी आपको ऐसा दिखा रहा है ठीक है, बट एम्पेरिकल एविडेंसेस ये है कि TSNE आपको ज्यादा अच्छा देता है। तो अगर आपको जब भी 2D डायमेंशन पर डेटा देखना है तो ऑलवेज गो फॉर द TSNE, और आपको डायमेंशन रिड्यूस करना है तो ऑलवेज गो फॉर PCA। ओके LDA आपको यूज नहीं करना है, LDA इज नॉट रिकमेंडेड। ओके आप LDA का, अभी मैं आपको आरिस का एग्जांपल दे रहा था कि आरिस में मैं इस डाटा सेट पे आपको LDA नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि उसमें डायमेंशन में रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके फाइनल क्लासेस 2 ही हैं। लेकिन मैं आरिस डाटा सेट पर इसको रन करूँ, इसमें क्लासेस 3 होती हैं, तो उस पर मैं क्या करता हूँ LDA भी यूज कर सकता हूँ, PC भी यूज कर सकता हूँ और सबको मैं 2D में उसका रिप्रेजेंटेशन देख सकता हूँ। लेट्स रन इट। So this is PC of Iris dataset and this is LD of Iris dataset. तो कौन सा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? LD आपका ज्यादा अच्छा काम करेगा। आप देखोगे तो उसने तीनों क्लास आपकी सबसे अच्छी तरीके से तीनों अलग अलग कर दी हैं। ओके तो क्योंकि LD आपकी सुपरवाइज एल्गोरिथम है तो LD आपका हमेशा ज्यादा अच्छा काम करेगी PC से अगर आप क्लासिफिकेशन करना है तो। So this is 2 dimension with the PCA and with the LDA. Okay? अगर आपको PC और LD का पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है ठीक है, स्टेप वाइज एग्जांपल कैसे चीजें कैलकुलेट होते हैं, तो आप इस सवाल पे जाके आप उसको एक बंदे ने आई थिंक दिस इज द गाय PhD गाय इसने दिया हुआ, आप यहाँ से देख के उसको देख सकते हो, बट जरूरत नहीं है। कर्नल PCA जो मैं आपको बताया था, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था कर्नल PCA, अगर आपका डाटा इस तरीके से है, ये आपका sklearn का एग्जांपल है, वहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है। ओके एवरीथिंग इज सेम। PCA यू कैन यूज फॉर द, ये हमारा हैंड रिटन डिजिट्स का एग्जांपल है ठीक है, जिसमें लो डिजिट्स आपके sklearn में जो डिजिट्स है उसको हम उठा रहे हैं ठीक है। आपकी 1797 आपकी इमेजेस हैं और 64 यानी कि 8x8 की आपकी ग्रे स्केल आपकी इमेज है। ओके 8x8 साइज की। ओके सो मैंने PCA 2 कर दिया, यानी कि सब डायमेंशन मैंने 2 रिड्यूस कर दिए, यानी कि पहले डायमेंशन मेरी 64 थी, अब मैंने इसके 2 में रिड्यूस कर दिया, ओनली 2। ओके अगर उसके बाद मैं डाटा को देखूंगा तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा डाटा को। ये आपकी पूरी कितनी क्लासेस है? 9 क्लासेस हैं, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि डिजिट आपकी 0 से लेकर 9 तक है, 9 क्लासेस हैं, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है PCA का। जब इसने L कंपोनेंट 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बनाया, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 बनाया, और दिस इज द इट इज शोइंग। ओके चूज आप ऐसे कर सकते हो, जो हमने पहले भी देखा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कौन से कितने लेने हैं आपको, क्योंकि टोटल मेरे पास कंपोनेंट कितने हैं, आई हैव टोटल कंपोनेंट 64, 8 into 8। ओके ये मेरे फीचर्स हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पिक्सेल्स बिकम द फीचर, और 8x8 की मेरी इमेज है, 8x8 पिक्सेल्स की टोटल 64 है। तो अगर आपको कम करने तो आप यहाँ से 30 भी लोगे तो आपका काम चल जाएगा, 40 इज ओके फाइन, 40 भी आपको काम दे देगा। तो वही मैं आपको कह रहा था कि जब पहले हमारे पास डीप लर्निंग नहीं, इसमें एक बार उसको 2 को 40 चेंज करके एक बार प्रिंट करोगे? किसको? इसको आप जो आपने 64 को 2 हाँ 40 करना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो अगर मैं 40 उठाऊं या टॉप उठाऊं, तो पीछे 2 रखूंगा तभी टॉप 2 उठा के देगा मुझे, या 40 ले लो उसमें से टॉप 2 यूज कर लो, तो सेम थिंग, बात में सेम ही प्रिंट होगा ना, सेम बात है ना, एवरीथिंग इज सेम। ये मुझे टॉप 2 देगा, टॉप 40 लगाऊंगा, टॉप 40 देगा, उसको टॉप 2 मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा प्रिंट कराने के लिए, राइट? हाँ वही बात हो जाएगी। अब लेट्स से मैं टॉप 2 यूज करता हूं, लेट्स से मैं टॉप 3 and 4 यूज करता हूं, लेट्स से टॉप 3 और 4 में यूज करता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उस केस में कैसा होगा, क्या है इंडेक्स ऑटोमोटिव भी तो 5 करने पड़ेंगे फिर। कम ऑन सर, हमने कंपोनेंट्स ही 2 बनाए हैं ऊपर, तो फिर वो 3 और 4 कहां से उठाएगा? ओके राइट दैट इज एग्जांपल। लेट्स मैं कंपोनेंट में 10 बना लेता हूं। ओके ओके अब मैं यहां पर 3 और 4 यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज 3 and 4। तो आपके थोड़ा अभी देखो अब अलग दिखाई देगा, क्योंकि इस केस में इसने कंपोनेंट जो है ये इतना वेरिएंस कैप्चर नहीं कर पाए, तो बहुत सारी आपकी ओवरलैप हो गई, ठीक है, राइट? अंडरस्टूड? सो दिस इज
1 and this is 2. Okay, sorry, 2. Let's run it. Okay, ये आपका बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली आप अब मान लिया आपको डिजिटल क्लासिफिकेशन करना है, आपको इसके ऊपर क्लासिफिकेशन टेक्निक लगानी है, तो आप 64 की 64 यूज मत करो, आप सिर्फ 30 यूज कर लो, 30 के ऊपर क्लासिफिकेशन चला दो। जो आपको समझा रहा था कि डीप लर्निंग तो बहुत हाई डायमेंशनल डेटा को यूज कर लेती है, अभी 8x8 की तो इमेज होती नहीं है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं। अगर आप उस पर कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने के लिए जाओगे, सो इट विल बिकम ए ह्यूज डायमेंशन, तो फिर आपको पीसीए यूज करके आपको डायमेंशन को कम करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन यूज द KNN और यू कैन यूज द एनी अदर एल्गोरिथम लाइक रैंडम फॉरेस्ट और व्हाटएवर, जिससे कि आप उसको क्लासिफाई कर पाओ इमेजेस को। क्योंकि आपका लेट से आपका इमेज जो 1000 to 1000 की है पिक्सल की, तो आपकी कितनी हो गई 10 lakhs अराउंड, 10 lakhs आपके फीचर्स बन गए, तो बहुत ज्यादा होती है 10 lakhs फीचर्स, तो उसमें आपका पीसी यूज होता है फिर। ओके, लेकिन अभी हमारे पास डीप लर्निंग आ गई है, तो हम कन्वेंशनल मशीन लर्निंग यूज नहीं करते हैं इमेजेस के लिए, तो इससे हमें पीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले पीसी बहुत यूज होता था, क्योंकि बेसिकली हमको कन्वेंशनल मशीन लर्निंग ही यूज करनी होती थी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए भी। ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट? यस सर। ओके, नॉइज फिल्टरिंग, आप इसकी नॉइज फिल्टरिंग कर सकते हो इसकी। से लेट से आपका मैंने कोई डिजिट्स मैंने क्रिएट की थी, ज्यादा डिजिट्स, ओके, आपकी नॉर्मल डिजिट्स जो मैंने क्रिएट किए, ओके। अब लेट से मैं इसमें क्या करता हूँ, रैंडम नॉइज डाल देता हूँ इस इमेज के ऊपर। मैंने क्या इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो उसमें नॉर्मलाइज होने के बाद इसने इमेज को नॉर्मलाइज किया, तो आप देखोगे तो बहुत सारी नॉइज आ गई इसमें, अब पहले से खराब हो गई है, तो मैंने इसमें रैंडम इसमें नॉइज इंप्लीमेंट कर दी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप टॉप 20 या टॉप 100, आपके पास टोटल 64 फीचर्स 30 ले लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा तरीका आप ये है कि आप बेसिकली, मैं क्या करता हूँ कि मैंने इससे फिट किया इस नॉइजी डाटा के ऊपर, और मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स उठाए जो कि 50% कैप्चर कर रहे हैं, सिर्फ 50% क्या कहते हैं उसका वेरिएंस कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट जो 50% वेरिएंस आ रहा हो सकता है नॉइज की वजह से आ रहा हो, तो मैंने टॉप 50% वेरिएंसेस मैंने सिर्फ कैप्चर किया और बाकी का 50% मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बाकी का 50% आई एज्यूम कि मेरा वो नॉइज डाटा से आ रहा है। ओके, तो मैंने 50% कैप्चर किया, इसने मुझे बताया कि सिर्फ आपका 50% जो आपका वेरिएशन है टॉप, वो आपके सिर्फ 12 वेरिएबल से आ रहा है, यानी कि बाकी के मैं सारे छोड़ सकता हूँ, 64 - 12। ओके, और उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, उसको फिर मैं इसको क्या करूंगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो ये आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म की फैसिलिटी देता है। मैंने 12 बनाए, 12, और 12 से फिर मैं 64 पे चला गया। ओके, सो उसने क्या किया, 12 मैंने 50% वेरिएंस लिया, बाकी मैंने हटा दिया, तो नॉइज मेरे सिस्टम से हट गई। अब इस 12 को मैं फिर से मैं रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, अगेन मैं 12 से 64 पे चला गया। सो आप देखोगे तो इसने नॉइज रिमूव कर दिया सिस्टम में से। अब यार देखो, अब ये इससे काफी हद तक इससे बहुत ज्यादा बेटर है। ओके, सो पीसी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप हमेशा रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेट से मैंने पीसी को मैं 30 से, मेरे पास 100 फीचर्स से मैं 30 पे गया, तो 30 से वापस मैं 100 पे जा सकता हूँ विदाउट लूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन। तो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होता है और 100% एक्यूरेट होता है पीसी में आपके पास। ये मुझे समझ नहीं आया कि 50% को वेरिएंस कैप्चर किया, ये इस लाइन का वैसे क्या मतलब है? आप अगर लेट से मेरे पास 64 पीसीज हैं, ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने कितने लिए हैं, लेट से मैं टोटल 64 है, 64 में प्रिंसिपल कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, और मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल कंपोनेंट मुझे कितना कितना वेरिएंस कैप्चर कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो लेट से मैंने सिर्फ वो वेरिएंस उठाए, टॉप 12 जो फीचर्स हैं वो 50% वेरिएंस कैप्चर कर लेते हैं, और बाकी अच्छा, हाँ, समझ गई। जब हम देख रहे थे ऊपर ना 0.44.19, तो पहले की। ओके, तो 50% मेरा वेरिएंस सिर्फ 12 प्रिंसिपल कंपोनेंट ने कैप्चर कर लिया। मैं ये मान के चला हूं कि बाकी का जो 50% और नॉइज की वजह से आ रहा है वेरिएंस, तो मैंने 50% ले लिया, उसको रिवर्स मार दिया, तो नॉइज में डिलीट हो गई। ओके, लेकिन पीसी ये काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देता है। जब भी आप उसको रिड्यूस करोगे तो जो नॉइज जिस वजह से आ रही होगी वो हमेशा आपके फीचर्स आपके हमेशा रिमूव हो जाते हैं। अगर आपका डाटा नॉइजी है तो अगेन यू कैन यूज द पीसी टू रिमूव। तो वापस उसको क्यों करते हैं, स्केल कम करने के बाद फिर बढ़ाते क्यों हैं? नहीं, बढ़ाने का आप अगर देखना चाहते हो रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए बढ़ाने कोई फायदा नॉइज डाली ही इसलिए थी जिससे कि कम करके दिखा सकें, समझने के लिए। हाँ, समझने के लिए। पर हाँ, ये फैसिलिटी आपके पास है कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर पाओ। ठीक है, यू कैन नहीं, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज, कहाँ, मतलब कैसे यूज होता है? बस समझने के लिए। सो जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिए कि हमारा नॉइज कैसे काम कर रही है, नॉइज को मैंने कैसे रिड्यूस किया, दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इनवर्स ट्रांसफॉर्म आपका मॉडलिंग में कभी यूज नहीं होगा। ओके, क्योंकि मॉडलिंग में आप इसे रिड्यूस करोगे, कभी आप ओवर सैम्पलिंग नहीं आओगे ऊपर, ठीक है ना, हमेशा आप अंडर करोगे, अंडर सैम्पलिंग ऑफ द फीचर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीए एंड एलडीए एंड टीसीएन। यही तीनों चीजें हैं जो यूज होती हैं। टीसीएन आपको हमेशा यूज करनी है
2D में चीजें देखने के लिए, पीसी आपको यूज करना है डायमेंशन डिटेक्शन के लिए, एलडी आपकी जैसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है तो उसे आप भूल जाओ, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन एग्जाम इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि एलडी कहाँ यूज होता है, तो एलडी मैंने सिर्फ इसलिए किया है अदरवाइज एलडी का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एलडी एक पूरी सेपरेट एल्गोरिथम है जो कि बेसिकली आपकी यूज होती है डायमेंशन रिडक्शन के लिए, पर वो एलडी आपकी अलग है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट ड्रैकलेट एलोकेशन। ये आपकी एल्गोरिथम है आपकी डायमेंशन रिडक्शन, लेकिन आप उसको लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से कंफ्यूज मत होना, वो आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है और ये आपकी डायमेंशन रिडक्शन एल्गोरिथम है। ये आपकी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, वो आपकी सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, दोनों अलग है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट एलसीए, पीसीए एंड एलडीए। इसमें प्रैक्टिकली चीज समझ में आ गई तो बहुत आसान है, क्योंकि पीसीए को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। थ्योरेटिकली मैंने चीज आपको मैथमेटिकली समझाई है, कैसे चीज यूज होती है वो मैंने आपको समझा दिया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप स्लाइड और ये वीडियो फिर से देख लेना, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको ट्राई किया कि आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ पाओ, कोवेरिएंस कैसे होता है वो आप समझ पाओ, एसवीडी क्या होता है मैंने आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप चले जाना किस पे, 3 ब्लू 1 ब्राउन पे। ओके, वो आपको बता देगा आइगन वेक्टर कैसे काम करते हैं, आइगन वैल्यू कैसे काम करते हैं। एसवीडी शायद उसमें नहीं है तो कहीं और ढूंढ लेना, आपको चीजें पता चल जाएंगी। ओके, सो वी आर गुड। ओके सर। हाँ ओके, सो अभी टाइम हो गया आपका 2:30 और हमने कब स्टार्ट किया था 1, तो अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। सो वी हैव हाफ एन आवर, 2:40 हो गया तो हमारे पास अभी हाफ एन आवर है, तो हम एक एल्गोरिथम कवर कर सकते हैं आज के लिए, आपकी अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। सो अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। इसमें टारगेट क्लास नहीं होती, मतलब कुछ क्लासिफाई नहीं हो रखा होता, बस डेटा दिया होता है और कुछ उसकी क्लासिफिकेशन नहीं होती। ओके, लेबल्ड, नो टारगेट क्लास।